Namaskar. A very good evening to all. I, C.A. Shubham Agrawal, welcomes you all on behalf of the ICA Jaipur branch in our today's session on Standards on Auditing 700 series, which talks about audit conclusions and reporting. सर कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आर द बेंचमार्क्स जो हमारे ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं. सो without delaying, I would like to introduce our guest speaker of today's session, Sir C.A. Sunil Sharma sir. Currently, C.A. Sunil Sharma sir is working as director at VSR and Company LLP. Sir is a member of institute and also holds bachelor in commerce. Sir holds a professional experience of approximately 13 years, and out of if we divide those 13 years in a part, so worked at VSR and Company LLP from June 16 to till now, and previously so worked at SR Watliboy and Associates from March 2010 to June 16. So holds experience in various fields like statutory audits of multinational companies, practical experience of USG AAP reporting, SOX compliance, group reporting, agreed upon procedure, and various other things. So also holds the industrial experience like technology industry, e-commerce industry, startup, industrial manufacturing, consumer products, healthcare, transport, and leisure. कहते हैं कि एक सच्ची प्रतिभा को शब्दों की मोहताज नहीं होते. सर उसी तरह से आपका इंट्रोडक्शन छोटे शब्दों में कर रहा हूँ. So I welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you, Shubham. I think बहुत कुछ बोला आपने. Thanks a lot. Thanks for such a nice introduction. First of all, good afternoon to everyone, and I would like to thanks management committee of ICI Jaipur branch, Akash Bargoti, my dear friend as well as branch chairman, Kuldeep, again good friend, dear friend. My I can consider him like my younger brother. And as Secretary Sahab, Mr. Ankit Maheshwari. So I used to call them Secretary Sahab. So thank you all for providing me this opportunity. And the purpose of taking this session is not to just to read out some slides या फिर कुछ ज्ञान देना. You guys, everyone, you guys aware. हमने पढ़ाई के टाइम में भी पढ़ा है इसको. If I'm not wrong, आई थिंक एसेज वगैरह तो हम आई थिंक पहले हमारे टाइम में P2 हुआ करता था. आई डोंट नो व्हाट इज इंटरमीडिएट का भी क्या बोलते हैं. हमने P2 में पढ़ा, फाइनल में पढ़ा, और व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग बेसिक मींस जो कि मतलब एक हर ऑडिटर को एक रिक्वायर्ड होता है. ऑडिटर और ऑडिटर रिपोर्ट आपस में जुड़े हुए हैं. वी कांट सेपरेट इट, राइट? सो द पर्पस इज to discuss the various requirement, my personal experience where generally things go wrong, जहाँ पे हमें focus करना पड़ेगा, और challenges वगैरह क्या क्या challenges आते हैं, कहाँ पे और focus करना है. I tried collating the various guidance note, education material which is available regarding these essays, SS 700 and 799. So the purpose is at the end of this session, we can say कि हाँ, we all know कि हमें कौन सी guidance refer करनी है, क्या क्या चीजें focus करनी है, और मतलब हमें गलतियां कैसे avoid करनी है. So moving on to next slide, guys. Yeah. So as I discussed, the coverage will be all all standard on auditing. Which required for reporting our audit report. So SS 700 is the basic. Apart from that, the other essay जो कि impact करता है हमारी audit report पे, be it CAM related essay, that is SS 701, be it modification related, we'll discuss in detail modification and all. Be it emphasis of matter paragraph या other matter paragraph का essay हो, essay 706, और last में SS 720, that is auditor responsibility related to other information. We'll discuss in bit detail in coming slide. I have tried included a bit few things related to going concern. I strongly believe that somehow we are missing focusing on this essays, और जो audit report में हमें impact लेना है going concern matter का,
somehow I feel कि उस पे और फोकस होना चाहिए और हमें हमारी रिपोर्टिंग में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. कुछ एक चीजें आई ट्राइड कोलेटिंग गाइडेंस लिंक फॉर यू गाइस रिलेटेड टू कारो. अभी आप लोगों को सबको पता होगा कारो, नया कारो इज एप्लीकेबल from for the financial year 21 and 22. So जब आपकी ऑडिटें शुरू होंगी मार्च ऑनवर्ड्स, लिस्टेड कंपनी, बड़ी कंपनी की, या फिर आप आगे आगे नेक्स्ट ईयर में सितंबर अक्टूबर तक जाओगे तो आपके लिए कारो नया एप्लीकेबल होगा. Last but not the least is related to IFC, that is internal financial control. So somehow मुझे मतलब ऐसा लगता है कि we guys are ignoring it, but I strongly believe कि it is going to be the future of the audit. Financial controls and all, these are very, very important. It is equivalent to, or I can say it is more important than the number audit. अगर imagine अगर कंपनी के कंट्रोल ही खराब होंगे तो आप नंबर पे कैसे कंफर्ट लोगे? So that is the point. We will talk a little bit about the internal controls and reporting thereon. I attach in my PPT. I have provided the link of the guidance note material in this regard, and we will also discuss a bit about the audit report of internal financial control. In case if you guys have any question, you can put on the chat box. I will try to address those, or you guys can reach out to me. I will share this slide with the institute also, that can be circulated if you feel that it is good, or ready reference की तरह आप लोग इसको use कर सको. Okay guys, so let's have some chit chat. First of all, what do you think? जब हम लोग ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? If you can provide your thoughts in the chat box. See, audit report है तो audit report क्या है? I will share you my experience, my discussion with my seniors, with companies and all, और कहाँ गलती करते हैं. I would also like to share my experience कि जब मैं बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों के या नहीं में, तो वहाँ पे क्या मुझे आंसर मिलते हैं. I will share that too. But before that, would just like to know your thought process in this regard. Anyone? I can see membership number of you guys in the chat box, but I'm also eagerly waiting for some answers. Anyone, or you can somebody can request, or maybe the institute person who is taking care of this thing can unmute them. End product of the audit. Great. Abhishek Singh typed this. End product of the audit. Very, very good, Abhishek. I think ultimate crux मैं बोलूँ तो भाई काम तो इतने दिन करा, खूब करा, किसी का भी हो, report at the end of the day आपकी उस काम को demonstrate करती है. What else guys? What else? Someone has given trust to user. Nice line, Rahul. Really appreciate your wordings. Great. What else? Okay, CA Seema Sharma. Okay, हम आपका membership number जान गए. Thank you. Just joking. Anyone? Clean, qualified, good. Yes, it is relevant. And बहुत सारी जो audit report की ना, मैं अगर simple language में बोलूँ, branches, sub branches, बहुत सारे हैं. We'll discuss one by one. I try to in simple language summary में आपसे discuss करूँगा. What else? Okay, you guys can type your thought process. So I can share my experience. So I was doing audit of one of the largest IT company of the country, and there we had a discussion with the management. It's a deputy CFO. Unfortunately, I was part of that discussion where a client was like कि नहीं ये financial देखना है, वो देखना है, ये करना है आपको. And I was sitting with my director at that time. I was executive, or maybe like an AM. I don't remember it correctly. So discussion was going on,
he was creating pressure, नहीं financial में ये है वो है, and we are keep listening कि okay ठीक है ये है आपका. Then all of sudden सब कुछ सुनने के बाद my director replied कि सर देखो फाइनेंशियल आपका है, आप देखो ठीक है ऑडिट करना कर लेंगे, हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, चाहे वो 7 पेज की हो 10 पेज की हो, हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, एंड वी विल कवर एवरीथिंग. एंड उस डिस्कशन के बाद में डिप्टी सीएफओ के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए. इमेजिन. सो ऑडिट रिपोर्ट इज दैट इम्पोर्टेंट. एंड थिंक अबाउट इट, जब भी आप कोई फाइनेंशियल आप देखते हो, आप एनुअल रिपोर्ट खोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में आते हैं, पहले क्या आता है? ऑडिट रिपोर्ट, राइट? तो फाइनेंशियल का स्टार्टिंग पॉइंट ही ऑडिट रिपोर्ट है. एनुअल रिपोर्ट में आई अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें पहले आते हैं, आई डू एग्री, बट अगर आप देखोगे तो जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन होता है, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले आती है. तो इमेजिन ऑडिट रिपोर्ट का इतना इंपॉर्टेंस, राइट? सो आई वॉज टॉकिंग टू यू इनिशियली कि जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, जब मैं पूछता हूँ हाँ जी ऑडिट रिपोर्ट का क्या है, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिलते हैं. I'm just in a lighter manner. मैं पूछता हूँ कि भाई हाँ अगर मान लीजिए आपके कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कहाँ देखोगे? तो द आंसर इज कि जी पिछले साल की है उससे ले लेंगे. मैनी टाइम मुझे आंसर मिलता है कि जी वो तो हमारे प्रिंसिपल बनाते थे या सीनियर पार्टनर बनाते थे. ओके, देन किससे बात हुई कि वो तो सर टैक्स पोर्टल पे होता है 3CA 3CBA. ओके, एंड मैनी टाइम की बोला हाँ सर वो तो बना देंगे, मतलब फॉर्मेट कहीं से भी लो, इंटरनेट से लो, बहुत सारी कंपनीज रहती हैं. सो मेरे को इस तरह के खूब सारे आंसर मिले डिफरेंट सिचुएशन पे. आई इवैल्यूएटेड कि अच्छा बाबा चलो कंपनीज एक्ट की नहीं, दूसरी सोचो, प्राइवेट लिमिटेड LLP की सोचो, पार्टनरशिप फर्म की सोचो, अगर आपको ऑडिट एप्लीकेबल है, अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी हो. इन वेरी वेरी रेयर केसेस, मुझे तो एक आध भी याद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मुझे सही आंसर मिला हो इस चीज का. डोंट टेक इट अदरवाइज, बट मेरे को कभी उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला. एडिंग टू इट, मैं एक बहुत बड़ी स्टार्टअप है, सॉरी बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत बड़ी स्टार्टअप है जिसका ऑडिट प्रपोजल हमने दिया, हमने शुरू करा. एंड ऑडिट प्रपोजल के बाद में आई थिंक फर्स्ट थिंग जो हम बोलते हैं कि हाँ जी आपके फाइनेंशियल दे दीजिए, एक बार देख लेते हैं पिछले बार के. एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे मेरी नजर ऑडिट रिपोर्ट पे गई. एंड देन आई वाज सो सरप्राइज कि ये क्या हो रखा है. आई विल शेयर विद यू व्हाट वाज द इंसिडेंस. सो ओल्ड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट वाज यूज्ड इन दैट. इट वाज प्रीवियस SS 700 एंड ऑल, जहां पे ओपिनियन पैराग्राफ पहले नहीं आता. मेरे को तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी याद भी नहीं है. मेरे जहन में ये बैठा हुआ है कि भाई सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन पैराग्राफ आएगा, बी इट क्लीन, बी इट क्वालिफाइड, बी इट एडवर्स, बी इट डिस्क्लेमर, एनीथिंग, बट आएगा ओपिनियन पैराग्राफ. एंड पहला पेज देखते हैं वो शॉक. देन वी हैड अ गुड डिस्कशन विद देयर प्रीवियस ऑडिटर. मैंने पूछा कि भैया, बोले अजी आप देख लो, आप इंटरनेट पे देखो, आपको ऑडिट रिपोर्ट का यही फॉर्मेट मिलेगा, पता नहीं आप क्या बोल रहे हो. अच्छा जी चलो देखते हैं. तब हमने देखा, फिर उन्होंने दिखाया भी, यस ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट की साइड पे वो शायद पुराना वाला है, हो सकता है मे भी शायद मैं गलत हूँ, मैं अवेयर ना हूँ, अगर नया फॉर्मेट डाला हो तो मैंने कहा अच्छा जी. देन हमारा डिस्कशन हुआ. मैंने कहा आपने SA 700 का भी रेफर करा, रिवाइज हुआ है, इट इज समवेयर अराउंड 2018, या फिर उसके रिलेटेड गाइडेंस नोट देखें, या गाइडेंस नोट में आपने एग्जाम्पल रिपोर्ट देखी जहां पे पूरा सब कुछ, सारी सिचुएशन, ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन मेंशन कर रखा है. क्लीन रिपोर्ट हो, प्राइवेट कंपनी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन, राइट, एवरीथिंग इज मेंशन कि कौन सी क्वालिफाइड होगी, डिस्क्लेमर कब होगी, या अगर आपका मैं बात करूं एम्फेसिस ऑफ मैटर वगैरह एंड ऑल, मेनी थिंग्स आर गिवन इम्प्लीमेंटेशन गाइड. तो the answer came to know is no. Then I showed them, then I told them कि please sir देखो. And imagine, मतलब ये रिपोर्ट हाँ उनके बड़े बड़े इन्वेस्टर तक है. मतलब I can't name those investors, but they are one of the known, जो आप बहुत
कॉमनली पेपर में पढ़ते होंगे, सब कुछ पढ़ते होंगे, एंड देन द पर्सन रियलाइजेस कि हाँ थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन है. सो द पर्पस इज नॉट टू एम्बैरेस समवन, बट द थिंग इज कि ऑडिटर रिपोर्ट हमारी है. अगर हम ऑडिटर रिपोर्ट की क्वालिटी इंश्योर नहीं करेंगे तो बस दिक्कत है. तो ऑडिटर रिपोर्ट की कॉमा, इवन मैं अगर डोंट टेक इट अदरवाइज, बट कॉमा, फुल स्टॉप, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर. हम कॉमा फुल स्टॉप की बात नहीं करेंगे आज. वी विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट द कंटेंट, द क्वालिटी, डिफरेंट सिचुएशन, प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या आती हैं वो सब. बट यस बॉस, इट्स अ टॉप नॉच थिंग जो कि आपको टेक केयर करनी है. अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिंग, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो पहली चीज जो नजर आती है वो ऑडिट रिपोर्ट आती है. तो यू शुड बी टॉप ऑफ इट, नो कॉम्प्रोमाइज विद दैट. या चाहे वो आपकी छोटी कंपनी की हो, चाहे वो बड़ी कंपनी की हो, किसी की भी, राइट, दैट रिप्रेजेंट्स यू. आप साइन करते हो उसको नीचे ऑडिट रिपोर्ट को, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. Okay guys, so moving on to next slide. Yeah. Okay. So what is the content of audit report? We will discuss one by one, right? So मैं अगर बात करूं, ये एक आइडल स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट में, या मैंने भी कहीं और से नहीं लिया, ये सब चीजें मैंने खुद ने नहीं बनाई. आई रेफर द वेरियस essays available on the institute website, या जो एजुकेशन मटेरियल है, गाइडेंस नोट है, या एग्जाम्पल रिपोर्ट है, ये कंटेंट पूरा का पूरा स्लाइड में मैंने भी वहीं से लिया है. तो एक ऑडिट रिपोर्ट, आइडल ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या क्या होगा, राइट, दैट इज आई ट्राइड समराइजिंग हियर. इट स्टार्ट विद द ओपिनियन पैराग्राफ. ओपिनियन पैराग्राफ इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. गाइस प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आप कई बार गूगल पे लिखते हो ऑडिटर रिपोर्ट फॉर्मेट, ये सब हो सकता है आपको पुराने वाले पे 2014 वाले पे ले जाए, राइट, बट डोंट गेट कंफ्यूज योरसेल्फ. एसए 700 और उसकी रिलेवेंट सीरीज रिवाइज हो चुकी है. यप, सो तुम लोगों को उनसे रिलेवेंट कंटेंट देखना है. यू शुड रेफर दोज एसेस, और या फिर उनके एजुकेशन मटेरियल है या गाइडेंस नोट जो भी है, please do refer that. You will get lot of material. And one thing, the mistake we generally guys do, ये जो informal reference होता है, जैसे मेरे को हमेशा आंसर मिलते हैं, जी हमने तो इंटरनेट से ले लिया, हमने तो लिस्टेड कंपनी ले लिया, हमने तो प्रीवियस ईयर की ऑडिट रिपोर्ट ले ली. तो let's stop doing it. Trust me. जो ऑथेंटिक सोर्स है, व्हाट इज द ऑथेंटिक सोर्स, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो हमारे एजुकेशन मटेरियल है, जहां पे एग्जाम्पल रिपोर्ट्स हैं, आप प्लीज उन्हीं को ही रेफर करो. आप उनको वर्ड में कॉपी पेस्ट करो, उनको फॉर्मेटिंग करो प्रॉपर, और फिर ट्रैक चेंज मोड में अपने रेस्पेक्टिव कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनाओ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या there are lot of tools which are in developing in the market. I at the end I will also request institute also at larger forum कि हम ये जो जितना भी एजुकेशन मटेरियल है, कंटेंट है, ऑडिट रिपोर्ट, सब कुछ, we should try to automate this. हम चाहे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाए, ऑटोमेशन लगाए, बट उसमें हम लोग मतलब इस तरह से करें कि जो हम सब मेंबर की सुविधा के लिए हो, और जो गलतियां होती हैं, आई थिंक सॉर्ट ऑफ सिली मिस्टेक, आई थिंक वो अवॉइड हो सके, और हम लोगों का जो क्वालिटी है वो एकदम टॉप नॉच है. we'll discuss about it little bit in at the end. So yeah, starting with the audit report, I think opinion paragraph is the first paragraph. Yeah, not think मतलब है, then basis for opinion, then emphasis of matter paragraph, ये थर्ड नंबर पे आता है अगर एप्लीकेबल है तो. We'll discuss little bit more in detail on a coming slide. SA 706 is the relevant standard of auditing governing the emphasis of matter paragraph. Yeah. And अगर आपने emphasis of matter paragraph include करा है, तो आप जो नीचे है लास्ट लाइन आइटम है, रिपोर्ट ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसमें आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, और स्टैंडर्ड रिपोर्ट में जो भी आपको चेंजेस करने हैं
वो आप उसमें चेंजेस करेंगे, आप एम्फेसिस ऑफ मैटर का ध्यान रखते हैं। कौन कौन से पैराग्राफ होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दूं, उसमें होता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी की सारी मतलब इन लाइन है, या जितना भी मतलब बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो है, जो भी है वो रिक्वायर्ड पर डिस्क्लोज है एंड ऑल। तो आपको वहां पे एक्सेप्शन डालने पड़ेंगे, आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का हवाला देना पड़ेगा। यू कैन गो थ्रू, यू कैन गो टू द इम्प्लीमेंटेशन गाइड या एजुकेशन मटेरियल जो भी है, ऐसे 700, 705, 706 का एक ही है। आप उसमें जाएंगे, आप जाके देखेंगे तो आपको कई सारी एग्जांपल रिपोर्ट मिलेंगी, अलग अलग सिचुएशन, वेरिड, राइट। मतलब आपको कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आपको कोई बाहर देखने की जरूरत भी है। यू कैन प्रेफर इट। देन CAM, again important thing, governed by a separate essay, we'll talk about bit detail. CAM हम की ऑडिट मैटर है, शॉर्ट में हम CAM बोलते हैं। ग्लोबली भी इट्स इन फैशन, इट्स नॉट लाइक कि इंडिया में ही है, ग्लोबली भी है। हम लोग, मैं यूएस की बात करूं, यूएस में इट्स वेरी पॉपुलर टर्म। PCOB या जो CPA के जो भी बोर्ड्स वगैरह हैं, वो सब चीजों पे बहुत एम्फेसिस करते हैं। विल डिस्कस इन डिटेल, एक सेपरेट स्लाइड है इसके ऊपर, व्हाई इट इज रेलेवेंट। देन अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जनरली इस चीज पे फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते जब बड़े क्लाइंट के होते हैं। आई अंडरस्टैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या छोटी कंपनी जहाँ पे हम लोग असिस्ट करते हैं क्लाइंट्स वगैरह को एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट बनाने में, आई डू एग्री कि वहाँ पे ये चीज ध्यान देती है, कंसिस्टेंसी आती है। बट थिंक अबाउट द सिचुएशन जहाँ पे आप ऑडिट कर रहे हो बट एनुअल रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट कोई और क्लाइंट बना रहे हैं। एंड इमेजिन द वर्स्ट सिचुएशन कि जहाँ पे आपने जो नंबर ऑडिट करा और जिसके बेसिस पे आपने ऑडिट रिपोर्ट दी, और जो क्लाइंट ने अदर इंफॉर्मेशन में डाल रखी है वो कंसिस्टेंट नहीं। तो वो ही सिचुएशन अवॉइड करने के लिए अदर इंफॉर्मेशन इज समथिंग इंक्लूडेड हियर। विल डिस्कस इन लिटिल डिटेल in our coming slide. Then the next 2 points, it's a general thing, management board responsibility. ये management and board responsibility, this is something which we generally, sorry guys, yeah, this is generally we use in a private limited company. जहाँ पे private limited company नहीं है, वहाँ पे आपका board of director हट जाता है वर्ड, राइट। और ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल भी इसलिए, मतलब वो स्टैंडर्ड में दे रखा था। अगर आपका कंपनी नहीं है, आपका अदर देन कॉर्पोरेट एंटिटी है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, राइट। तो ये भी आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। इफ यू गो टू द एजुकेशन मटेरियल, you will see the example report is there for you guys. You can take a reference, can copy paste on a Word file, format it, and then start preparing your audit report in a traction mode. Similarly, auditor, then moving on to next paragraph, next heading, that is auditor responsibility for the audit of financial statement, right? ये standalone word इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैंने ये extract उठाया आपका कंपनी की example, कंपनी की audit report का। Guys, ये auditor's responsibility for the audit of financial statement. One important point I would like to bring to your attention, इसमें एक paragraph आता है related to internal control on financial reporting, या IFC के ऊपर। So बहुत जगह goof up होता है या गलती होती है। क्या होता है, आप लोगों को सबको पता होगा IFC किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है, किन पे नहीं होती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट इन डिटेल, बट इमेजिन कि अगर आपका IFC एप्लीकेबल ही नहीं है और आपने ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपने डाल रखा है, तो आई थिंक वो चीज सही नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो सही नहीं मानता। तो केयरफुल कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखना है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि वो जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है वो आपको रिमूव करना है। ये बहुत ही जर्नल मिस्टेक आई हैव सीन, मतलब जो जनरली ऑडिट रिपोर्टों में मेरे को दिखती है। एंड सिमिलर एक पैराग्राफ आपके रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में भी होता है, वहां पे भी आपको मेंशन करना पड़ता है। अगर आपके IFC रिपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है, आप उस फ्रेमवर्क में फॉलो नहीं करते हो, तो आपको वहां पे भी मेंशन करना है। अगर फॉलो करते हो, अगर एप्लीकेबल है कंपनी को, तो आपको सेपरेट रिपोर्ट देनी पड़ती है, विच कम्स आफ्टर कारो रिपोर्ट इफ इट्स एप्लीकेबल टू द कंपनी,
and the reference of that report is given in the main report. Yeah, I hope you guys are with me till now. One more point, second last point, which I skipped, is related to other matter. Other matter, I have included a separate slide on that. We will discuss in little detail other matter maybe. So other matter and emphasis of matter paragraph, it's governed by SA 706. So what are the situation where we need to give the other matter paragraph and emphasis of matter paragraph? We'll discuss in little detail in coming slides. Yeah. In case if you guys have any query, question, please feel free to ask. Yeah? I will try to answer it now or maybe after the session. Yeah. Okay. Let's move to the next slide. Okay. So अभी मैंने एक सबसे पहले, so we are going by sequence, right? So first of all, SA 701, which talks about key audit matter CAM, right? So anyone have an idea? कभी किसी ने practically deal करा हो? I would like to know in our chat box if you guys can answer. I will wait for 1-2 minutes for your answer and can then move. कभी किसी ने कैम की ड्राफ्टिंग करी है, प्रैक्टिकली डील करा है की ऑडिट मैटर में? क्या चलो कि कभी किसी ने देखा हो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ी हो कि ऑडिट मैटर क्या क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकती है, क्या मतलब कब जरूरी होता है? I have summarized everything. I tried summarizing in this slide, but think about it. कि कब हो या मतलब I would like to know experience of you guys. Okay. No one has experienced this SA 701 CAM. I can tell you guys, it's an important essay. Globally, बहुत popular है, बहुत useful है, right? And it gives sort of a power. Yep, Gaurav. Yep, you are absolutely right. It is one related party can be one of the CAM. Rightly said. Very good. What else? So I can tell you, I was saying कि ये जो CAM है, it gives power to the auditor, right? देखो हमारे audit में judgment, decision making, कई सारी चीजें होती हैं. I can quote many examples. Let's take a classic example of startup companies. See, मैं एक food aggregator का audit करता था पहले के time में. I will not name it because of the confidentiality. Yeah, tax litigation. You are bang on, Gaurav. So मैं एक food aggregator की जो आप समझते हो हमारे ऐप होती है जिनसे हम ऑर्डर करते हैं. So it was one of the popular brand a few years back. मैं उसकी ऑडिट करता था. तो उसका जो रेवेन्यू था, ट्रांजैक्शन था, कमीशन इनकम इज द इनकम. अब वो कमीशन इनकम इमेजिन 50 रुपए से लेकर 30 रुपए की, 50 रुपए की, कुछ भी हो सकती है, राइट? जस्ट टू टेक एन एग्जांपल कि भाई आपका 200 रुपए का फूड का ऑर्डर है, आपका वेंडर के साथ कमीशन 5% है, तो 200 रुपए का 5% भी कैन बी रेवेन्यू. तो इतने बड़े ट्रांजैक्शन होते थे, आईटी होता था, मतलब इमेजिन उसका ऑडिट कैसे करना हो, उसका रेवेन्यू का ऑडिट कैसे करना हो. एंड कमीशन इनकम है, फिर उनका बिलिंग है, फिर उनका इनडायरेक्ट टैक्सेस से कंप्लायंस है, भाई जीएसटी चार्ज कराया, उस टाइम वैट होता था, क्या होता था, वो सारा. एंड आईटी एप्लीकेशन है, आईटी एप्लीकेशन की हम ऑडिट करने की कोशिश करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम इट केम इनएफेक्टिव बिकॉज ऑफ द जो भी आईटी का फ्रेमवर्क है एंड ऑल. तो बड़ी दिक्कतें आती थी हमें, मतलब हमारा यू कैन से सिग्निफिकेंट टाइम ऑडिट का उस पर्टिकुलर चीज में ही होता था और वही सब कुछ था. हम ऑडिट करते थे, ऐसा नहीं हम ऑडिट नहीं करते थे, उसका मतलब ऑडिट होता था भाई, हम चाहे इनडायरेक्ट टैक्स रिकॉर्ड रिटर्न से कंपेयर करें या कलेक्शन से कंपेयर करें या हम एग्रेसिव सैंपल टेस्टिंग करते थे, बहुत ज्यादा सैंपल आते थे, करने पड़ते थे, पार्ट ऑफ ऑडिट है. या फिर एनालिटिकल कर लिया आपने, कंपैरिजन कर लिया आपने कि भाई चलो वेंडर को कितना पेमेंट दे रहे हैं, चलो आपने इतना पेमेंट करा, मोटा मोटा आपका इतना कमीशन आया, आपने अपने रेवेन्यू से कंपेयर करा, लाइक दैट, बहुत सारे. सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, ये सारी चीजें बहुत आती थी, राइट?
तो अगर मैं आज के सिनेरियो में उस चीज को यहाँ पे ब्रिंग आउट करूं, तो मुझे लगता है कि भाई मुझे कैम की तरफ देना चाहिए था। सो कैम, अगर आप किसी भी एनुअल रिपोर्ट लिस्टेड कंपनी का देखोगे, कैम दो पार्ट्स में होते हैं, दो, एक टैबुलर फॉर्म में होता है, दो कॉलम होता है। पहला कॉलम में होता है कि क्या क्या क्रिटिकलिटी है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। या शुभम, आई गॉट योर आंसर। कैम डिपेंड ऑन एंटिटी टाइप. Like when I work for hotel industry, CAM was to check the HR working and the way they are providing services. Not exactly, Shubham. ऐसा नहीं है. We'll discuss. So yeah, going back to my point, अगर आप कोई भी अच्छी लिस्टेड कंपनी देखोगे या कोई भी लिस्टेड कंपनी मेजर आप देखोगे, you will find CAM है ऑडिट रिपोर्ट में. CAM के दो पार्ट होते हैं, दो कॉलम होते हैं. पहले कॉलम में आपका होता है क्या क्या क्रिटिकलिटी है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है. चलो, मैं अगर अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करूं रिवेन्यू वाले को, तो मैं बोलूं, मैं भाई लिखूंगा कि इंडिविजुअल नॉन मटेरियल ट्रांजेक्शन, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन, या मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी इन्वायरमेंट. आईटी इन्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, कि भाई आप सोचो उस कंपनी का आईटी इन्वायरमेंट कैसा होगा. सबसे पहले तो अल्टीमेट कस्टमर रजिस्टर्ड होगा, राइट. उस कस्टमर रजिस्टर्ड होगा, पहले वो ऑर्डर देगा, उसकी जेन्युइनिटी देखेंगे, ऑर्डर देगा, ऑर्डर देके उसके पैसे आएंगे, चाहे वो सीओडी हो या एडवांस में हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू. फिर उसके एडवांस आएंगे, पूरा कंसिडरेशन आएगा. कंसिडरेशन आने के बाद उस कंसिडरेशन का कमीशन काट के आप वेंडर को दोगे. वेंडर को काटने के बाद में आप कंसिडरेशन हो गया, फिर आप वेंडर को इनवॉइस दोगे जीएसटी वगैरह का, कि भाई तेरा ये कमीशन इनकम है जो हमने लिया है. एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उन सारे नंबर्स को रिपोर्टिंग करोगे, बीट आपकी इनडायरेक्ट टैक्स की फाइलिंग होगी या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, एनीवे. तो पहले कॉलम में ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी. दूसरे कॉलम में ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी को मिटिगेट या ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को इंश्योर करने के लिए आपने क्या क्या ऑडिट कर. सो दिस इज हाउ कैम्स वर्क. सो गाइस, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैम, ईयूएम, क्वालिफिकेशन, एडवर्स, डिस्क्लेमर हम मिक्स कर देते हैं. तो डोंट डू दैट. CAM is altogether different. It has nothing to do with qualification, या मैं बोलूँ emphasis of matter, other matter नहीं. ये separate, इसका अपना अस्तित्व है, इसको इसके अस्तित्व में ही रहना. तो don't try to mix it with other things on the audit report. Yeah? Okay, so I think CAM. Okay, let's go back to our presentation. So it's applicable to the 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल हुआ वो. तो सिंपल टर्म्स में मैं बात करूं कि अगर आपके मार्च 18 की ऑडिट रिपोर्ट है, यू विल नॉट सी दैट, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2018 से थी. तो 18-19 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद में आप सब सारी लिस्टेड कंपनी में तो देखोगे, राइट. तो और इसमें देखो, बहुत लेमैन लैंग्वेज, बहुत सिंपल बोलूं, लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, बाकी पे नहीं, राइट. Until unless it is specified by the law and regulation which is applicable to that entity. But an auditor can use its judgment कि उसको कैम देना है या नहीं देना. बट ऐसा नहीं है कि भाई कैम, अच्छा जी चलो कैम दे दो, खूब सारे कैम दे दो. ऐसा होगा तो ना उसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा. आप अगर किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में या एनुअल रिपोर्ट में देखोगे, you will not see more than 2, 3, maximum 4 कैम. नहीं, इससे ज्यादा नहीं. ऐसा नहीं है कि कैम खूब सारे कैम है, सब आते ही जा रहे हैं, उसका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा. क्रिटिकल मैटर एक कंपनी के लिए, बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए 2, 3, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं होगी. सो क्या क्या हो सकता है कैम. अगर मैं बात करूं गुडविल वैल्यूएशन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज होती है. कब आती है गुडविल? बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूं कि भाई एक कंपनी ने एक दूसरी एंटिटी एक्वायर कर, या उसके इसमें भाई मोटा एक्सेस मनी दिया, फेयर वैल्यू ऑफ असेट या लायबिलिटी के ओवर एंड अबव, इंटेंजिबल्स इन्वॉल्वड है उसमें, या ऐसा. लॉन्ग टर्म असेट है. मैं अगर पीएसयू कंपनीज का एग्जांपल दूं, मे बी लॉट ऑफ यू डूइंग पीएसयू ऑडिट्स, तो अगर मैं एग्जांपल दूं, ऑयल वेल हो गया, ऑफशोर हो गया, ऐसे सारी चीजें हो गई. फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इन्वेस्टमेंट जैसे हो गए, या मैं बोलूं जनरली एनबीएफसीज में आई हैव सीन ECLs, राइट. ECLs इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, राइट, जो कि इंड एस रिक्वायर करता है. वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एंटिटी नीड्स टू डेवलप द मॉडल अराउंड इट. उनको एक साइंटिफिक मेथड में डेवलप करना पड़ता है.
खुद के एंटिटी के खुद के फैक्टर्स और मार्केट के फैक्टर इंक्लूड करते हुए उनको एक फॉर्मूला या एक मेथड बनाना पड़ता है कि उनका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या होगा, राइट? सो दैट इज अगेन अ कैम. यू विल सी इन एनबीएफसी, in every NBFC, you will see 2 to 3 CAM. One CAM on expected credit loss, right? And another CAM is on a IT environment, right? Largely, if you'll see कोई सी भी आप अच्छे से अच्छी NBFC listed NBFC अगर आप उठा के देखेंगे, yeah? Revenue recognition we discuss, उसके भी CAM हो सकता है. NBFC के अलावा जो आपके कंज्यूमर मार्केट में है, IM है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, और कोई दूसरे हैं, उन एंटिटी में विल सी स्पेसिफिक कैम ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑलवेज, हमेशा मिलेगा. एंड इट इज गवर्न बाय अदर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग which talks about significant risk including fraud risk, which is always there on revenue recognition until unless it is strongly rebutted. तो आपको हमेशा उस चीज पे मिलेगा. ऐसे कोई मेजर एक्विजिशन करा एंड सो ऑन. दिस लिस्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव, इट इज इंक्लूसिव. और भी कई हो सकते हैं. ऑडिटर जजमेंट नीड टू बी यूज्ड इन दिस रिगार्ड कि क्या आपको कैम देना है, क्या नहीं देना है. वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, कैम ऐसा नहीं है कि अच्छा जी चलो मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो चलो जी कैम दे दो, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चीजें तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका कि जी कैम मॉडिफाई, वो आप एडवर्स क्वालिफाइड ओपिनियन उन सबसे मिक्स मत करो कैम को. कैम का अपना सेपरेट अस्तित्व है, राइट? ऐसा नहीं है. तो डोंट मिक्स कैम विद द डिस्क्लोजर, या फिर उसको ऐसे भी ट्रीट मत करो कि भैया जी ये तो सेपरेट ओपिनियन है. नो, इट्स नॉट. इट्स अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ओनली, एंड इट टॉक्स ओनली अबाउट अ सिग्निफिकेंट मैटर जो भी देने ऑडिटर के जजमेंट में, व्हिच आर क्रिटिकल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर का जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, और जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंट है जानना, राइट? तो उसका रेलेवेंस आपको खराब नहीं करना चाहिए. एंड प्रैक्टिकली आई कैन टेल यू, जब मैं मेरे क्लाइंट्स की ऑडिट रिपोर्ट की बात करता हूँ तो वी यूज रेफरेंस ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ये जो कैम हमने जिस चीज का दिया है ये नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी में आ रहा है, इसका डिस्क्लोजर कहाँ आ रहा है, एंड सो ऑन, और मतलब उसका डिस्क्लोजर कहाँ आ रहा है. तो वो क्रॉस रेफरेंसिंग यू विल सी इन ऑलमोस्ट एवरी लिस्टेड कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट. Important thing, very important thing, कि आप जो कैम दे रहे हो, I practically experience this thing, last thing I'm telling you. So आप जो भी कैम दे रहे हो या प्लान कर रहे हो, you guys should discuss it in a formal way with those charged with the governance. In simple term, board of director, audit committee, इनसे आप डिस्कस करो, because आपका थॉट प्रोसेस उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है. So I myself dealt with this. जब हम ऑडिट रिपोर्ट आती है हमारे, हम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से गवर्न है, हमारी ऑडिटिंग पूरी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से गवर्न है. सो जब हम ऑडिट रिपोर्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम बात करते हैं, जब बोर्ड होता है, ऑडिट कमेटी होता है, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द एसेज एंड ऑल, तो उनको लगता है अरे ये कैम क्या है, इसकी जरूरत क्या है. जब हम फर्स्ट कॉलम में वी डिस्कस अबाउट दिस कि हम 2 कॉलम कैम के होते हैं, एक में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, एक में ऑडिटर ने क्या क्या करा, उन कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे कैसे डील करा. तो वहां पे हमेशा ही मैनेजमेंट क्या, जो मैं बोलूं ऑडिट कमेटी बोर्ड है, उनका कंसर्न आता है कि नहीं जी क्यों देने, क्या इशू है आपको बताओ. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको फूड एग्रीगेटर कंपनी का जो मैं करता था. इमेजिन उसके मैनेजमेंट से डिस्कशन है, वो बोले कि क्या जरूरत है, हम आपको सारी डिटेल दे रहे हैं, चाहे रेवेन्यू 30 रुपए की कमीशन इनकम हो, चाहे 300 रुपए की हो, सब कुछ है. आप देखो रिपोर्ट, आप तो रिपोर्ट देख लो, पूरी सब कुछ देख लो. तो ये डिस्कशंस वगैरह ये सब प्रॉपर मैनर में होने चाहिए. वी नीड टू मेक द मैनेजमेंट understand or to make those charged with the governance understand what is the relevance, how it is, from where it is coming, क्यों देना हमें, किस चीज के लिए देना है, and so on, और हमने उसके लिए क्या क्या करा है, right? In simple words, make the management and the other people understand what is the relevance of this and why we are giving this, how it is governed. Yeah. Okay. Moving on to next slide. Okay. Sorry guys. Okay, moving on to next slide, guys. Okay, I got one question, one point. Abhishek Singh, whether conclusion on audit procedure also be to be given? No, never. It's a separate thing. So conclusion on audit procedure क्या होता है अभिषेक? Conclusion on audit procedure तो आप अपनी opinion जो देते हो
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं आपकी बात करेक्टली समझ पा रहा हूँ तो वही है। तो कंक्लूजन तो बाबा डिफरेंट हो गया ना। योर कंक्लूजन कैन बी क्लियर, राइट, क्लियर ओपिनियन can be qualified or you can say modified and so on, but CAM is altogether different. उसका again repeating, उसका अस्तित्व different, मतलब अपना खुद का अस्तित्व है उसका. Let's not mix it. I hope I have answered, Abhishek. In case if you have any query, you can, yeah, thank you. So guys, okay, we talk little about, I think, SA 700 and 701, which talks about CAM. Now I would like to spend, I think, good time on this modification of opinion. Yeah, that is SS 701. And मुझे SS 70, not 701, it's 705. My bad. SS 705 modification of opinion. और मुझे पूरे essay में सबसे बढ़िया चीज ये चार्ट लगती है. मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए इसीलिए, आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, बट आई थॉट कि वापस उसको लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं, बताते हैं. ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटर का जजमेंट कि कब क्या करना है हमें. सो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है मिस स्टेटमेंट. ऑडिट में ना मिस स्टेटमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, हम लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए. तो सबसे पहले तो बात होती है जी मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है. अब मिस स्टेटमेंट की क्या बात करें, अगर सिंपल कोई बोले, सिंपल बोले गलती, राइट, तो गलती का मतलब ये नहीं है कि गलती, मतलब यहाँ पे हम गलती की बात करें जो स्टैंडर्ड और ऑडिट प्रोसीजर उसके हिसाब से निकल के आ गई हमारी, राइट. नाउ कोई मिस स्टेटमेंट या सो कॉल्ड गलती है, ठीक है, उसको इवैल्यूएट करो. इवैल्यूएट कैसे करो, क्या वो मटेरियल है, right? You all knows materiality concept in essays and all. I don't want to discuss it again. So क्या वो मटेरियल है, right? मतलब सिंपल एग्जांपल दो, अगर मान लीजिए आपकी एक कंपनी की कोई सेल्स 100 करोड़ की है और आपको कोई मिस स्टेटमेंट मिली, गलती मिली 10 करोड़ की, then simple it is material है मिस स्टेटमेंट. लेकिन आपको कोई गलती मिली 10,000 की, forget it, immaterial. लेकिन जो 10,000 की भी मिली, आप उसको ये जरूर इवैल्यूएट करना कि ऐसी 10,000 की गलतियां 1000 तो नहीं है ना, अदरवाइज यू विल लैंड इन अ मटेरियल थिंग. तो इमटेरियल गलतियां जो कि मटेरियल होगी एग्रीगेट लेवल पे, थिंक फ्रॉम दैट एंगल. ठीक है जी, ओके. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिस स्टेटमेंट हो, ठीक है जी, ओके, एंड देन मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, ठीक है जी, है, बिल्कुल है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ ये चार्ट क्या बोलता है, तो लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन. क्या होता है सर, तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूं, पहला पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड. अपन अपना रेवेन्यू का पॉइंट लेते हैं जी, अपना एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि 100 करोड़ की आपकी है और 10 करोड़ आपने निकाल लिया जी, गलती है जी, ठीक है. अब मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट से बोलेंगे जी ठीक कर लो. मैनेजमेंट में भी सम टाइम हो सकता है कि नहीं जी आप हमारी बात नहीं समझ रहे, हमारे हिसाब से सही है. हम उनको समझाएंगे अकाउंटिंग की लैंग्वेज, ऑडिटिंग की लैंग्वेज, मान लो कंसेंसस नहीं बनता है, ठीक है जी, नहीं बनता, फिर हम आगे इवैल्यूएट करेंगे. दैट इज ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम देखेंगे वो परवेसिव है या नहीं है. परवेसिव मतलब कि उस एक गलती के कारण, सो इन कमिंग स्लाइड मैंने परवेसिव को भी एक बार इंक्लूड करा, अब थोड़ा सा और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे अगर मैं छोटी सी बात करूं तो परवेसिव की भाई सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करूं, डिक्शनरी मीनिंग बात करूं, तो क्या मतलब वो जो मिस स्टेटमेंट है वो इतनी क्रिटिकल है, इतनी बड़ी है कि वो आपके पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर देगी. यू नीड टू इवैल्यूएट इट. सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो परवेसिव का ये मतलब. कमिंग बैक टू आवर टेबल, हम बोलते हैं हाँ जी गलती है, मटेरियल, बट नॉट परवेसिव, राइट. कन्फाइंड है कि जी हाँ सेल्स है, सेल्स में गलती है, लेट्स रिड्यूस टू आवर दिस गलती को 10 करोड़ से 5 करोड़ कर देते हैं एक बार के लिए. हाँ जी आपकी 100 करोड़ की रेवेन्यू है, 100 करोड़ की रेवेन्यू में 5 करोड़ की गलती है, राइट. और हमने देखा, असेस करा अपना जो भी स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, हमने बोला नहीं 5 करोड़ तो बॉस मटेरियल है, ये आपका, इसको ठीक कर लो, नहीं ठीक करोगे तो हमें क्वालिफाइड करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा.
हाँ, और सब कुछ हमने देख लिया कि उस गलती के कारण बाकी चीजें इम्पैक्ट नहीं कर रही, परवेसिव नहीं है, तो ठीक है जी। तो हमने असेस कर लिया, लास्ट में हम निकल के आए कि भाई हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। हमने पूरा, हमारे पास पूरा डिटेल है, एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस है टू कोरबोरेट कि मिस स्टेटमेंट है, तो वी आर लैंडिंग इन अ फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट सेक्शन, दैट इज अ क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके जी। और दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट, हमें लग रहा है, अब मैं इफ यूल सी, मैं फर्स्ट कॉलम का जो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे, उसका इफ यूल सी, या कर्सर अगर मैं यूज करूं, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भाई आपको लग रहा है कि ये गलती है, लेकिन मैनेजमेंट ने आपको, अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूं तो मैनेजमेंट ने कागज नहीं दिखाए, डिस्पाइट ऑफ आप बीइंग एन ऑडिटर, आपका नाम अमित शाह है और मैनेजमेंट आपको कागज नहीं दिखा रहा, तो दैट्स अ पॉइंट कि भाई आपको ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले, तो आप क्या करोगे? और आपने ये जरूर असेस कर लिया कि हाँ जी ये गलती है, इस गलती के मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, लेकिन मतलब परवेसिव नहीं है, राइट, तो भी आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे। स्टिल आप जो ये है, आप इसी तक, मैं अगर बात करूं तो आप सेकंड कॉलम पे ही रहोगे। नाउ बात करते हैं परवेसिव अगर हो। चलो मैं अब अगर बात करता हूँ, हम ऑडिट करा, हमने देखा, हमने सैम्पलिंग करी, हमने देखा कि भाई हाँ ये गलतियां तो है ही, हमें तो, हम जब सेल्स देख रहे हैं तो मैनेजमेंट के पास कोई कागज ही नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं पड़ रहा कि सेल्स से वाकई जेन्युइन है नहीं है, और कि एक गलती है तो हर जगह है, हमें यही नहीं पता कब माल बना, कब किसको बिका, बस एक कागज आपको बस रेवेन्यू का नंबर दे दिया, राइट। आप देखो कि भाई अगर आपका अगेन परवेसिव है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करता है सारे को, राइट। अब देखो जी, रेवेन्यू आपकी है पूरी की पूरी है, तो रेवेन्यू से फिर रिलेवेंट कॉस्ट भी होगी, कॉस्ट भी होगी तो फिर बाकी जो खर्चे हो रहे हैं उनका भी क्या जेन्युइननेस होगा। थिंक अबाउट इट, थिंक इन दिस मैनर कि अगर एक चीज आपके पूरे के पूरे को, मतलब मैं सिंपल देसी भाषा में बोलूं तो एक बीमारी आपके पूरे शरीर को खराब कर देती है, राइट, तो उस चीज में, और आपको बीमारी पता है, ठीक है, तो उस चीज में नाउ वी आर लैंडिंग टू थर्ड कॉलम में, जो मेरा सेकंड रो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है, और परवेसिव है, इन दैट केस आपको एडवर्स ओपिनियन देनी है, राइट। सबसे आखिरी जो कि वर्स्ट कैटेगरी होती है, वर्स्ट कैटेगरी कि साहब आपको डिटेल भी नहीं है, परवेसिव भी है, मटेरियल भी है, कुछ ही नहीं देने को तैयार। भाई सॉरी, मैं आपको भूल गया बताना, एडवर्स के केस में तो क्या हमारे पास एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस आ जाता है, हमें पता रहता है कहाँ गलती है, क्यों गलती है, सब कुछ पता है। डिस्क्लेमर के केस में पता ही नहीं है, हम इवेल्युएट कर ही नहीं सकते उसको, राइट। तो ऐसे केस में जहां पे इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हो और वो मटेरियल हो, साथ ही साथ परवेसिव भी हो, राइट, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट हो, उस केस में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। और डिस्क्लेमर ओपिनियन में आई हैव सेपरेट स्लाइड, आई हैव इंक्लूडेड, विल डिस्कस इन लिटिल डिटेल क्या गलती करते हैं, जनरली गलतियां होती हैं, वो वी विल डिस्कस इन लिटिल डिटेल। एनी क्वेरी, क्वेश्चन टिल नाउ गाइस, you can type on a chat box. Okay, Rahul have one question, just a second. How does one decide materiality or pervasiveness in respect of ESG related disclosure, which also have several non-financial aspect to cover? राहुल, वन पॉइंट, मुझे ESG रिलेटेड डिस्क्लोजर कौन से होते हैं और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको गवर्न करते हैं वो देखना पड़ेगा। पर माय नॉलेज ESG रिलेटेड अभी कोई ऐसा है नहीं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट, राइट। आई हैव नेवर सीन, अभी तक मैंने देखा नहीं कि ESG रिलेटेड कोई डिस्क्लोजर होते हैं जिसमें नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो। और देखो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो तुम कैसे करो, एंड आई नो ESG is one of the emerging thing, it will come in fashion, but अभी तक आई एम नॉट अवेयर कि अभी तक कोई ऐसा कुछ आया हो जहां पे लॉ ने या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंडेट करा हो कि भाई आपको ESG रिलेटेड डिस्क्लोजर देने हैं और ऑडिटर को वो चेक करने हैं। ऐसा मुझे नहीं ध्यान कि ऐसा कुछ आया। टू आंसर, मे बी शायद आप ये पूछना चाह रहे हो कि मटीरियलिटी और परवेसिवनेस कैसे आपको इवैल्यूएट करनी है। तो अगेन आपको जजमेंट यूज करना है।
आपको अपने आप को कन्विंस करना है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है और सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है प्रॉपर्ली, राइट? बीइंग एन ऑडिटर, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस कि भाई हाँ आप सिचुएशन देखो, क्या वो मिस स्टेटमेंट ऐसी है कि कई बार आदमी I request you guys to be on mute. जो लोग अगर क्वेश्चन है that can be unmute और लोग पे रहेंगे. Okay. So the point is कि आपको उसको देखना है. मैं अगर और सिंपल टर्म में बोलूं, जो हम बात कर रहे थे कि भाई बीमारी कैसी है, राइट? कि आप बोलते हो कि बीमारी एक शरीर के हिस्से को इम्पैक्ट करती है, ठीक है? Then it's not pervasive. मटेरियल हो सकती है बीमारी, राइट? बट बीमारी ऐसी है जो सब कुछ ही इफेक्ट कर रही है. अब मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कोरोना जैसी बीमारी है तो वो तो भाई मटेरियल और परवेसिव भी है, बहुत जगह इम्पैक्ट करेगी, बहुत, नॉट ओनली लंग्स, बहुत, राइट? तो थिंक इन दैट मैनर. वो आपको हर सिचुएशन को वैल्यूएट करना पड़ेगा, यूनिक सिचुएशन. इसका कोई, मैं कहूँ कि कोई फिक्स फॉर्मूला हो, फिक्स आंसर हो, ऐसा कुछ नहीं, राइट? एंड ESG रिलेटेड थिंग, या अभी ऐसा आई एम नॉट अवेयर, मैंने कोई ऐसा गाइडेंस लिटरेचर नहीं पढ़ा, एंड आई एम श्योर ऑन दैट आल्सो कि ऐसा कुछ आया विच मैंडेट कोई डिस्क्लोजर है या ऑडिट रिपोर्ट को देखना नहीं. इमर्जिंग थिंग है ये, आते आते मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा, 1-2 साल में भी शायद लग जाए, बट हाँ, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑडिटर्स के लिए भी, कंपनीज के लिए भी. And maybe it will require separate report by way of annexure, or maybe separate altogether, a separate report. जैसे हम कारो की रिपोर्ट देते हैं, IFC की देते हैं, इस तरह से, या सेपरेट रिपोर्ट भी हो सकती है. बट अभी तक कुछ इसके ऊपर हुआ नहीं है. नॉट, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबली भी बात कर रहा हूँ. अभी डेवलपमेंट फेज पे चल रहा है, चाहे वो कोई भी बोर्ड, कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो PCOAB हो, UK की अथॉरिटियां हो, US की अथॉरिटियां हो, यूरोपियन कंपनीज की, यूरोपियन कंट्रीज की हो, कोई कुछ भी अभी तक कुछ हुआ नहीं. Okay, moving on to next slide. Pervasive, I think we discussed. I think the best example I can give you कि भाई वही है कि भाई आपकी बीमारी कैसी है, आपकी बीमारी पूरे शरीर को इम्पैक्ट कर रही है, राइट? या आपकी एक कन्फाइंड है, छोटी मोटी बीमारी है, एक हिस्से तक खराब, आपकी बीमारी शरीर के हिस्से तक ही कन्फाइंड है. This definition, I think this is the best example I can quote you. This definition is also given in essay, so would like to skip it quickly. In case I will मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोकूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो इसको 2 मिनट के लिए, and you can put your question on the chat box if you have any question, and I can sip my tea till that time. Okay, so let's move to the next slide, guys. Okay, so आप लोगों के लिए मैंने छोटे, ये भी मैंने ऐसे से ही लिए, एक सर्कमस्टांसेस लिए कि कहाँ कहाँ आपके मॉडिफिकेशन आ सकता है, राइट? सो बेसिकली इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा, 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा है मैंने, कि कब आपके, मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, डिस्क्लेमर हो, और कब आपके एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन हो. पहला बुलेट, जो पहला कैटेगरी बात करता है, वो ये है कि क्वालिफाइड और एडवर्स कब हो, राइट? कि भाई आपने एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, राइट? सेकंड पॉइंट, जो पॉलिसी सेलेक्ट करी है वो आपने कंसिस्टेंटली लगाई है, सही तरीके से लगाई है, नहीं लगाई. मैं अगर बहुत एक क्लासिक एग्जांपल दूं कि अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर ली कि आप अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट और NRV या वेटेड एवरेज मेथड, कुछ भी मान लो मेथड, आप इन्वेंट्री का मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो गिवन है. देयर आर फ्यू मेथड्स इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग गाइडेंस, अकाउंटिंग लिटरेचर अलाउड नहीं करता, राइट? लेकिन आपने सेलेक्ट कर लिया अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग लाइन, लेकिन आपने उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करा जब आप अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट? और वो जो अप्लाइड नहीं करा, उसके कारण जो डिफरेंस आ रहा है वो मटेरियल है, तो साहब आपका सिचुएशन आ जाती है क्वालिफाइड ओपिनियन उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री में. और वो इन्वेंट्री अगर बहुत ज्यादा बड़ी है, परवेसिव है, व्हिच वी डिस्कस इन अर्लियर स्लाइड, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको एडवर्स या डिस्क्लेमर देना है सिचुएशन के बेसिस पे. लास्ट पॉइंट ऑन दैट कि भाई आपके जो
डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल में, वो एप्रोप्रिएट है, एडिक्वेट है? देखो जो डिस्क्लोजर है इट इज वेरी रेलेवेंट। कोई भी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत लोग हो सकते हैं, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, राइट, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड ऑल, उनको समझ में आना चाहिए। आपने अकाउंटिंग कुछ और कर रखी है, डिस्क्लोजर कुछ और दे रखा है, बस वो तो फिर दिक्कत, राइट? देन यू गाइस शुड थिंक अबाउट कि क्वालिफाइड ओपिनियन आएगी, एडवर्स ओपिनियन। ठीक है जी। नेक्स्ट बुलेट टॉक अबाउट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की सब, या तो क्लाइंट ने आपको डिटेल नहीं दी या डिटेल है ही नहीं। एग्जाम्पल कोट करें, बाढ़ आ गई जी, बाढ़ आ गई, कागज पूरे बह गए, सब कुछ हो गया, अब क्या करेंगे? आपको तो ऑडिट करनी है, विश्वास पे ऑडिट हो नहीं सकती, वो बोले मान लो नहीं बाबा, वो बिल्कुल भी मत करना, राइट? आपको डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे। इमेजिन अ सिचुएशन कि भाई कागज तो थे, बाढ़ में तो डूबे नहीं, बट वो तो बोल के बैठ गया कि नहीं जी बाढ़ में डूब गए, क्या करूं, मैं तो अकाउंटिंग करनी है, आप तब बताओ। ऐसे सिचुएशन में यू हैव फुल राइट, राइट, कि अपना ऑडिट रिपोर्ट में अपनी बात को लेके जाओ, अब डिस्क्लेम करो, इजी नहीं है, मैं कहां से करूं, जो था उसके बेसिस पे कर दिया। एंड मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट, मैनेजमेंट ही तो बोल रहा है डूब गए, बाढ़ में चले गए, राइट? या कहीं जगह आपको लिमिटेशन इंपोज करे, मैनेजमेंट बहुत ही फिनाकी हो या बहुत ही इमोशनल हो कि नहीं जी ये कागज तो नहीं दिखाऊंगा मैं, आपका नाम अमित शाह ऑडिटर, और मैनेजमेंट फिर भी ना दिखाए कि मैं तो नहीं दिखाऊंगा। इन दैट सिचुएशन आल्सो यू कैन इवैल्यूएट कि भाई नहीं, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो। ओके जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सो हियर आई ट्राइड समराइजिंग कि जब मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट होती है वन बाय वन, देयर आर 3 स्लाइड in a sequence. First slides deal with the situation of qualified, second will be adverse, third will be disclaimer of opinion. So if you remember, I'm just going back to the first slide. If you remember, मैंने आप लोगों को ये कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बताया था, ठीक है? ये सीक्वेंसिंग बताई थी कि पहले ओपिनियन आता है, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, फिर यूएम आएगा एंड सो ऑन, ठीक है? अब ये तो है आइडल सिनेरियो, आप लोग मिंटोस का ऐड देखते होंगे, तो ये तो है आम जिंदगी, जहां पे नॉर्मल सिचुएशन है कि जो आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं है, साफ सुथरी ऑडिट रिपोर्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो है, ठीक है सिचुएशन। इसमें भी कुछ चीज हट जाएंगी अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है एंड सो ऑन, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा ज्यादा, बट आपकी आम जिंदगी नहीं है, मिंटोस जिंदगी है। अगर वो कौन सी है साहब, आगे मैं बात करूं, बी इट क्वालिफाइड सिचुएशन हो, बी इट एडवर्स हो, बी इट डिस्क्लेमर हो, और ये चीज हमने यहाँ डिस्कस करी, इस चार्ट में डिस्कस करी, ठीक है? अब इसका इम्पैक्ट हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या रहेगा, राइट? दैट आई ट्राइड समराइजिंग, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपकी हेडिंग चेंज हो जानी है, राइट? मैंने कई जगह देखा है, मतलब आई एम नॉट हाइलाइटिंग, सॉरी गाइस, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट मैंने कई जगह देखा है, आप लिख देते हो ओपिनियन, लिख देते हो हेडिंग, और नीचे फिर लिख देते हो कि जी एक्सेप्ट फॉर दिस ये क्वालिफाइड है, ये सब है, और हेडिंग आपकी ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन ही लिखी रह जाती है। डोंट डू दैट गाइस, प्लीज मेक श्योर जहां पे आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग एसए 705 स्पेसिफिकली बोलता है, राइट? तो ये अगर आप इमेजिन यार, आप अगर हेडिंग दोगे जब भी तो कोई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा जाके, अगर आप ओपिनियन दे दोगे वो भी ये सोचेगा कि हाँ जी भैया सब बढ़िया है, क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, राइट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर जब आपका क्वालिफाइड ओपिनियन है, योर हेडिंग शुड स्पीक अबाउट इट। सिमिलरली नेक्स्ट पैराग्राफ, आपका बेसिस क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन का? बेसिस मतलब यू विल सी लॉट ऑफ एग्जांपल, उसमें देख लोगे। एक सिंपल क्लासिक एग्जांपल की बात करते हैं अपन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। तो साहब आप बोल सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि सब इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, ये एसेस है, ये इस तरह से वैल्यू करी, उस तरह से ये गलती है, ये, और एक्सेप्ट फॉर दिस एवरीथिंग इज फाइन, ये आप ओपिनियन में एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट? तो दैट विल बिकम द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन कैन बी 1 2 डिपेंडिंग, बट ऐसा नहीं है कि खूब सारे ही होंगे। अगर खूब सारे होंगे तो यू गाइस शुड थिंक कि वो तो फिर परवेसिव हो गया, राइट? सो योर बेसिस ऑफ, सो इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज नोट, क्वालिफाइड ओपिनियन हेडिंग हो जाएगी आपकी, और बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन आपका आ जाएगा, ठीक है जी? नेक्स्ट की बात करते हैं, हम बात करते हैं अदर इंफॉर्मेशन। सो देयर इज सेपरेट स्लाइड ऑन दिस।
अभी थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन क्या होता है. सो अदर इन्फॉर्मेशन इज जनरली जो आपके, अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, बोर्ड रिपोर्ट हो गया, मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस हो गया, विच यू विल सी इन जनरली इन लिस्टेड कंपनी केसेस, या आपका कोई सेक्रेटेरियल रिपोर्ट हो गया एंड सो ऑन. तो अदर इंफॉर्मेशन में भी आपको कमेंट करना होता है. ठीक है. तो अब अदर इंफॉर्मेशन, अब मान लो जी आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दी. ठीक है, मान लो आपने इन्वेंट्री पे दे दी, और इन्वेंट्री पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे दी, और मैनेजमेंट ने अपनी परफॉर्मेंस, या जनरली मान लो एक इन्वेंट्री टर्न अराउंड रेशियो सुना होगा तुमने. इन्वेंट्री टर्न अराउंड रेशियो इज कि हाउ क्विकली मैनेजमेंट यूटिलाइज इट इन इन्वेंट्री, इन प्रोडक्शन, इन सेल. या सो इन्वेंट्री टर्न अराउंड रेशियो ऐसा है कि जितना कम होगा उतना बढ़िया होगा सर. तो आपकी क्वालिफिकेशन है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, और मैनेजमेंट ने अपने एनुअल रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट में बहुत अच्छा लिख रखा है कि जी देखो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम हो गया, हमारी इन्वेंट्री इतनी बच गई, ये है वो है, सब लिखा हुआ है. राइट. तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहां ब्रिंग आउट करें. अदर इंफॉर्मेशन जब आप कमेंट कर रहे हैं, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ पे, वहां पे ब्रिंग आउट करें, वहां लिखें, उसको कस्टमाइज करें. आप लिखें हाँ जी सब कुछ है, बट एक्सेप्ट द मैटर विच इज स्टेटेड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन. दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड. और ये बहुत ही मतलब ये गलतियां, मतलब आई कैन टेल यू, बहुत जो मतलब मैं बोल सकता हूँ काफी लोग काफी सालों से बड़ी बड़ी फर्म में एक्सपीरियंस लोगों से भी ये गलती हो जाती है. इट्स अ जेन्युइन मिस्टेक, यू नो. इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट, नो शेम इन टेलिंग कि हाँ भाई ये गलतियां हो जाती है और ये ध्यान में रखनी चाहिए. राइट. तो गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ, जब भी आपकी ये सिचुएशन हो, अदर इंफॉर्मेशन हो, आपको ये चीज जरूर देखनी चाहिए. अनदर मिस्टेक विच जनरली हैपन वो होती है कि भाई जब आप कंपनीज एक्ट ने जो मैंडेट कर रखा है कि आपको रिपोर्टिंग करनी है सेक्शन 143(3), उस पे कमेंट करते हुए आप वो जो भी ABCD EFG और आगे भी पॉइंट आ सकते हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो जब आप उन पे कमेंट करते हो तब आप उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट वहां पे भी लेके जाओ, वहां पे भी मेंशन करो. लैंग्वेज किस तरह से होगी? लैंग्वेज होगी एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ. ये बाकी सब ठीक है, लाइक दैट. लैंग्वेज की आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास मटेरियल है. मैंने लास्ट पेज स्लाइड में आपको रेफरेंस दे रखा है कि कहाँ पे जाएगा. बहुत सारी एग्जांपल रिपोर्ट है, यू गाइस कैन रेफर, गो एंड रेफर, आपको सब मिलेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. या ओके जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. या सो हमने क्वालिफाइड की बात करी. सेम सिमिलर सिचुएशन आपकी एडवर्स ओपिनियन में. I should have ideally I should have merged it जब मैं स्लाइड बना रहा था, but ठीक है, that's fine. I hope you guys will not mind. Now disclaimer of opinion. So I would like to tell you one situation past में. I was discussing with a CFO startup. It is one of the major startup जहाँ पे impairment के इश्यू थे, going concern के इश्यू थे. एंड वी डिस्कस, हमने एवेल्युएट करा, हम और इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी. अब मैं बात करूं इम्पेयरमेंट के लिए, तो इम्पेयरमेंट का एनालिसिस करने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, हमें प्रोजेक्शन चाहिए, हमें वैल्यू इन यूज चाहिए, जो सारी है वो मैनेजमेंट दे नहीं पाया. सेम गोइंग कंसर्न का. एंड अब वो चीज दे नहीं पाया, और उनका FA सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फिक्स असेट है. राइट. कि भाई अगर आप देखोगे, अगर आप बैलेंस शीट में असेट साइड का टोटल देखोगे, अगर 100 है तो उसमें 90 तो FA में ही पड़ा है. तो अगर 90 FA में पड़ा है तो FA क्रिटिकल है, और हम FA का इंपेयरमेंट नहीं कर पा रहे. राइट. और हम गोइंग कंसर्न भी असेस नहीं कर पा रहे. क्या करें? तो आई वाज डिस्कसिंग कि भाई नहीं, ये तो आपकी रिपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा विद द CFO. एंड ही वाज लाइक कि नहीं, मेरे को मेरी रिपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं चाहिए. मैंने कहा जी कोई बात नहीं, ये डिटेल है, ये आप करो नहीं तो पर्सनली आई हैव नो चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है, तो गाइडेंस से गवर्न है, सब कुछ है, देख लो. एंड देन आई वाज लाइक कि ही वाज लाइक कि नहीं, मुझे क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं चाहिए. एंड आई टोल्ड हिम नहीं, क्वालिफाइड की बात नहीं कर रहा मैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात कर रहा हूँ. यू शुड अंडरस्टैंड. आई वाज लाइक, आई शोड माय कंसर्न टू हिम. एंड ही वाज व्हेन ही हर्ड, अच्छा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वालिफाइड मत देना, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो. तो मेरे लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी कि उनको समझाना
कि जी क्वालिफिकेशन तो फिर भी ठीक है, इट इज कन्फाइंड टू 1 or 2 पॉइंट्स, 1 or 2 एरिया, डिस्क्लेमर इज रादर बिट बैड। फिर वो थोड़ा टेंशन में हुआ, फिर उन्होंने कई लोगों से डिस्कस करा, इन्वेस्टर के बड़े बड़े लोगों से डिस्कस करा, एंड ही लाव we like person wise we share good relationship. He was like कि यार ये जो चीज तुम बोल रहे हो बड़े बड़े लोग बैठे उनको भी नहीं पता। तो इमेजिन ये चीज, मतलब बीइंग, जब आप कोई कंपनी, आप कोई फर्म रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप लोगों को ये बेसिक चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। सो या कमिंग बैक टू आवर स्लाइड, सो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो अगेन, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है आपको हेडिंग चेंज करनी है, जस्ट लाइक क्वालिफाइड और एडवर्स की बात करी हमने, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, कैम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, कैम क्या करेगा, आपने सबको डिस्क्लेम कर दिया, आपने कहा कुछ है ही नहीं जी, तो कैम क्या करेगा, तो पॉइंट इज सिंपल एंड ऑल्सो अबाउट अदर इंफॉर्मेशन, कि जब आपने डिस्क्लेम ही कर दिया तो कैम और अदर इंफॉर्मेशन पे कमेंट ही क्या करोगे, राइट। सो अंटिल अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, you should not comment on, or not should, in fact you must not comment on CAM or other information, पैराग्राफ ही नहीं आएगा। I can tell you, आप अगर एग्जाम्पल रिपोर्ट में जाएंगे, गाइडेंस, आप चाहे SS 705 खोल के देखेंगे, या आप एजुकेशन मटेरियल या गाइडेंस नोट खोल के देखेंगे SS 705 के ऊपर, और आप एग्जाम्पल रिपोर्ट में भी जाके देखेंगे, या आप लिटरेचर में जाके देखेंगे, मतलब SS 705 की, यू विल फाइंड कि भाई जहां पे ये है नहीं होगा। सेम चीज आपके SS 701 में मेंशन कर रखी है और SS 720 में मेंशन कर रखी है। तो गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सब करा, राइट। सिमिलरली लास्ट में जो हमने पहले डिस्कस करा क्वालिफाइड और एडवर्स के केस में, अगर आप कमेंट कर रहे हो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो कि कंपनीज एक्ट के केस में होता है सेक्शन 143(3), उसमें भी आपको लैंग्वेज अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करनी है। देखो मैंने अब तुम्हें डिस्क्लेमर के केस में बताया, सॉरी क्वालिफिकेशन के केस में बताया था कि एक्सेप्ट फॉर दिस 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 मैटर, बाकी सब चीज ठीक है। अब यहाँ पे आपका तो डिस्क्लेमर है, तो आप ये तो बोल नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर डिस्क्लेमर या बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर बाकी सब ठीक है, नहीं, आपने तो डिस्क्लेम कर दिया। तो आप अपनी लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट उस तरह से करो कि because of the matter described in, say for example, I'm not telling you the exact language, so because of the matter described in basis of disclaimer opinion, we are not in a condition to come, right? So don't forget to modify the language related to requirement of section 143(3). Yep. In case until now if you guys have any query, question, feel free to ask, कोई भी अभी तक का क्वेश्चन। सो हमने बात करी मॉडिफिकेशन और रिपोर्ट, हमने चार्ट की बात करी, आई ट्राइड समराइजिंग देयर। उससे मुझे पर्सनली लगता है, या जितनी हमें बातें करी, कि अगर वो आप चार्ट समझ लोगे, उसको इवैल्यूएट करोगे, तो यू विल गेट द क्रक्स ऑफ SS 705, राइट। और ये सिचुएशन है, आई ट्राइड समराइजिंग, कि साहब जब मॉडिफिकेशन हो जाता है, मॉडिफिकेशन में आप ढूंढो क्या है, वो क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेम है, और उसका इम्पैक्ट कहाँ निकल के आता है वो रिपोर्ट में। अल्टीमेटली तो आपकी रिपोर्ट जा रही है दुनिया के पास में, तो आप वो देखो वो क्या जा रही है, राइट। तो वो आई ट्राइड समराइजिंग हियर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। देखो जब आप क्लीन रिपोर्ट देते हो या जब आप क्वालिफाइड रिपोर्ट देते हो, आप अपना पैराग्राफ शुरू करते हो ओपिनियन, वी हैव ऑडिटेड दिस, राइट। बट in case of disclaimer of opinion, yeah, in case of disclaimer opinion, क्योंकि आप ऑडिट ही नहीं कर पाए, तो आप you can't start your paragraph with कि we have audited, no, never, right? आपका पैराग्राफ शुरू होता है उस केस में we were engaged or we are engaged in the audit of this, right? And the language is very clearly mentioned in the SS 705 example by way of appendix में जो दे रखे हैं, या उनका जो गाइडेंस नोट है। तो गाइज प्लीज अवॉइड, मतलब इमेजिन कोई आपकी रिपोर्ट का पहले पैराग्राफ करे, आपने लिख दिया डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और फिर इसमें लगे कि भाई हमने तो ऑडिट भी कर ली, हम ये लिख रहे हैं कि वी हैव ऑडिटेड, और दूसरा हम लिख रहे हैं कि नहीं जी डिस्क्लेम है। ओके, सो अभिषेक हैव अ क्वेश्चन, वेदर अ मैटर already given in financial statement can be reported under other matter instead of EM. We will come to that, Abhishek.
There are separate slide on this. We'll discuss one by one कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा. I tried bifurcating between EUM and other matter. मतलब मैंने कोशिश करी कि उसको करूं. I will give you the situation, practical situation. जो universally accepted example बोल लो या best example बोल लो, that is there. So my request, थोड़ा सा wait करो. We will see that in coming slide. Yeah? Any other question if you guys have till now? Let's wait for 1 minute. Any other question if you guys can ask, you can feel free to type on chat box. What we'll do, we'll spend 5-10 minutes at the end of the session, and in case if you have any query, any thought process, any discussion, happy to discuss that too. And I can assure you, I will not going to spoil your weekends. We'll try to wrap up this session by 6 only. Okay, let's move to the next slide, guys. Going concern SA570 और उसका इम्पैक्ट हमारी ऑडिट ओपिनियन पे बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग जनरली मतलब फॉर्मेट में नहीं होता या उन सब में नहीं होता, हम स्किप कर देते हैं. सी इमेजिन अ सिचुएशन, आप ऑडिट कर रहे हो किसी क्लाइंट की, क्लाइंट लॉसेस में, जबरदस्त लॉसेस में, उसके करंट लायबिलिटी डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा है टू करंट एसेट. फंडिंग का कोई सोर्स नहीं दिख रहा, बैंक पीछे पड़ा है उसके कि भाई पैसा नहीं देंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है नहीं उसकी. क्या करोगे आप इस केस में? फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न, आप वो ले पाओगे या आप जस्टिफाई कर पाओगे? थिंक अबाउट इट. एंड आई कैन टेल यू, आपके बहुत सारे क्लाइंट में चाहे छोटे हो बड़े हो वहां पे इश्यू आ रहा है. थिंक अबाउट इट. और ये इश्यू है और आपने उस पर फोकस नहीं करा और आपने बोला जी सब बढ़िया क्लीन रिपोर्ट दे दी, और बाद में क्लीन रिपोर्ट देने के बाद ही 6 महीने बाद पता पड़ा कंपनी हो गई बंद. देन क्या करोगे आप? थिंक अबाउट इट. सो द गोइंग कंसर्न इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस चीज को रिपोर्ट में लाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि कर लिया जी अच्छी बात है, उसको कहाँ अपने रिपोर्ट फाइनेंशियल में ब्रिंग आउट करना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो इसके ऊपर भी एक एजुकेशन मटेरियल है, मैंने आपको मतलब मैंने लिंक दिया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिटेल है. सिचुएशन एग्जांपल की तरह मेंशन कर रखे हैं उसमें, प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह. इवन आई यूज्ड टू रेफर अ लॉट कि जहां पे गोइंग कंसर्न इश्यू है तो वहां पे कैसे हमें डील करना है, क्या डिस्क्लोजर जाएगा, क्या हमारा पैराग्राफ जाएगा उसके ऊपर, और कब हमें क्लीन ओपिनियन देनी है, कब हमारी क्वालिफाइड एंड कब डिस्क्लेमर एंड सो ऑन, राइट. सो let's discuss one by one. ठीक है. I have categorized in three point कि भाई कब आपका क्लीन ओपिनियन है, कब आपको पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में सो कॉल्ड पैराग्राफ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न देना है, कब आपको नहीं देना, मतलब और कब आपका कुछ है ही नहीं तो आपको उसको क्वालिफाइड करना है, डिस्क्लेम करना है एंड सो ऑन. सो आपने देखा, आपने इवैल्यूएट करा, आपने सारा देखा, आपने एक सिचुएशन एक कंपनी की देखी जहां पे लॉसेस थे, राइट, करंट लायबिलिटी ज्यादा थी, राइट, और कुछ नहीं थी, और आपको लगा कि भाई अब नेक्स्ट 1 साल चलाने के लिए तो 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यार. तो आपने देखा कि हाँ भाई कहाँ से लाएगा, क्या करे. मान लो वो सिचुएशन कंटिन्यू हो, ऑपरेशन रन करना है, कैपिटल तो चाहिए ही, राइट. एक तो सिचुएशन ये है जहां पे आप असेस कर पाते हो कि बैंक का सपोर्ट है, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल, डोंट टेक इट एज इट इज. एक तो आपके बैंक का सपोर्ट है, लोन सैंक्शन हो जाना है, या नया इन्वेस्टर आ गया, नया शेयर होल्डर आ गया, या मैं बोलूं जो भी डायरेक्टर प्रमोटर शेयर होल्डर है उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि हाँ भाई वो 5 करोड़ अब दे सकते हैं कंपनी को रन करने के लिए नेक्स्ट 1 ईयर वगैरह के लिए एंड सो ऑन. आपने देखा और आपने असेस करा, उसके आपने वर्क पेपर इकट्ठे करे, आपने अपने ऑडिट एविडेंस और एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस लिए आपने, और आप मैनेजमेंट ने वो चीज डिस्क्लोज करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ जी चलो ये लॉसेस है, कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से, और भी दिक्कतें हैं, बट ठीक है मैनेजमेंट के पास प्लान है बिजनेस रन करने का, और मैनेजमेंट इन सोर्स से फंड लाएगा, और ये करंट एविडेंस है कि हमारा लोन सैंक्शन हो गया अभी सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू पीरियड एंड डेट है,
या ऐसा है कि भाई जो प्रमोटर है या शेयर होल्डर है उसने प्लेज करा है सपोर्ट पूरा कि हाँ भाई पैसा चाहिएगा तो ठीक है मेरा बिजनेस है मैं सपोर्ट दूंगा, राइट। तो लाइक दैट वो सारा सब कुछ चीजें आ जाए और एडिकेट डिस्क्लोजर हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बाबत। जनरली ये एडिकेट डिस्क्लोजर बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके आ जाए या पीछे आ जाए बाय वे ऑफ नोट्स वगैरह प्रॉपर कि भाई हाँ ये सिचुएशन है ऐसा ऐसा है, राइट। और आप कन्विंस है पूरा उसमें, राइट। तो वी जनरली कॉल इट क्लोज कॉल, राइट। दिक्कत है सब कुछ डिस्क्लोज कर लिया प्रॉपरली, सब शांति है, ठीक है। मटेरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ लेट्स अवॉइड, नहीं जरूरत भाई, सब कुछ आ गया। डिस्क्लोजर अगर कोई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा तो कन्विंस हो जाएगा अपने आप में, ठीक है जी। लेकिन हम बात करते हैं कि जी ना तो भाई डिस्क्लोजर देना चाहता है ना कुछ और देना चाहता है, या चलो पहले कम वर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि चलो जी डिस्क्लोजर दे दिया, लेकिन हमने कहा कि नहीं यार ये तो हमें पैराग्राफ तो देना ही चाहिए, दिक्कत आएगी, राइट। आपकी क्लाइंट की बात हुई, क्लाइंट कन्विंस है, ठीक है, लेट्स ब्रिंग इट मटेरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न पैराग्राफ इन योर ऑडिट रिपोर्ट, राइट। उस केस में एंड आई कैन ऑल्सो टेल यू, अभी हम यूएम और अदर मैटर पैराग्राफ की भी बात करेंगे। ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ है, जनरली इसको और ईओएम को भाई बहन की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब बराबर से ही मानते हैं। बट आई कैन टेल यू दिस इज सेपरेट, दिस इज द वन बाय एसए 570 जहां पे बोलता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट में आपको डालना है, राइट। और जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन और एडवर्स ओपिनियन में बताया था कि अगर आप ये पैराग्राफ डाल रहे हो तो आपको जो रिपोर्ट कर रहे हो आप ऑन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वहां पे जब आप जो भी क्लॉजेस दे रहे हो ABCDEFG, राइट, वहां पे भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज ब्रिंग आउट करनी है कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर मेंशन इन अनसर्टेनिटी ये सब, या फिर भाई उसका एक्सेप्शन आपको हर पॉइंट में डालना है जहां जहां रिक्वायर्ड है, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में डालना है। या मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, भाई आप कहते हो कि नहीं जी गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही गलत ले रखा है ही नहीं कुछ इसके पास में, ना डिस्क्लोजर देने को राजी, राइट, कोई बेसिस ही नहीं है, गोइंग कंसर्न तो बनने ही नहीं चाहिए, तो लिक्विडेशन बेसिस पे बनने चाहिए, क्वालिफाइड है और या फिर एडवर्स अगर परवेसिव है, एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड ओपिनियन, राइट। बिकॉज इमेजिन कि भाई आप फाइनेंशियल बना रहे हो, फाइनेंशियल साइन कर रहे हो, पता पड़ा महीने बाद ही बंद हो गई है नॉन, then I think question will be on us कि भाई adequately going concern evaluate ही नहीं करा। So the ask of going concern essay also is कि भाई at least auditor next 1 year तक का evaluate करे कि next 1 year का कंपनी के पास में फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज है, सपोर्ट है, वो सब कुछ है जिसके बेसिस पे बिजनेस रन कर पाएगा, और इसीलिए ही गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है और उस अजम्पशन को लेके ही फाइनेंशियल बने जिसपे ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है, राइट। सो गाइस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई कैन टेल यू कि 80-90% पीपल फॉरगेट टू यूज दिस, मतलब भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं जाता। आप ध्यान दो, वेरी नाइस गाइडेंस मटेरियल इज देयर, मैंने लिंक उसका लास्ट स्लाइड में दिया है, अगर आप देखोगे तो वहां पे उसमें मिल जाएगा। सिचुएशन एग्जांपल है आपके लिए कि भाई किस सिचुएशन में क्या है क्या नहीं है, यू कैन कोरिलेट दोस and can bring this thing in our audit report. Yeah, so don't forget. Yeah, moving on to next point. Yeah, somebody, I forget the name, somebody asked regarding other matter and going other matter and emphasis of matter paragraph. So in simple manner, मतलब मैं अगर 2 भागों में इसको डिवाइड करूं, मेरा पहला पैराग्राफ मेरा बात करता है, वो बात करता है regarding emphasis of matter, and second paragraph talks about other matter paragraph. Yeah, in between I would like to take one question which came from Abhishek Singh, that if FS not prepared considering going concern affected, it is not case of pervasive. अभिषेक मैं कोशिश करता हूँ समझने की, आई थिंक जल्दीबाजी में तुमने टाइप करा है। If FS not prepared considering going concern, ठीक है जी, अगर going concern किसे नहीं करा तो कोई बात नहीं, going concern नहीं तो there is also a liquidation basis of accounting is also there। अगर नहीं है तो भैया तो कोई going concern होगा या दूसरा केस ही होगा कि liquidation की भाई बंद करने वाला है अपना धंधा, उसके बेसिस पे हम लोग बंदा अपना अकाउंटिंग बनाएगा। और जब liquidation basis पे होता है तो जनरली
मैं अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं, भाई आपके फिक्स असेट होते हैं वो करंट असेट हो जाते हैं क्योंकि आप बेचोगे ही उसको, और फिक्स असेट आपके जो वैल्यू होते हैं वो आपके WDV पे ना होके रिलाइजेबल या एक्सपेक्टेड रिलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू होते हैं, लाइक दैट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर डिस्क्लोजर आता है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में कि भाई ये लिक्विडेशन बेसिस पे बना है। सो टू आंसर योर पॉइंट कि वो परवेसिव है या नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो बिजनेस कैन बी लिक्विडेटेड, बट आप तो देखो जो हमने टर्म यूज करी ना परवेसिव, वो हमने मिस स्टेटमेंट के लिए यूज करें, ठीक है। अगर कोई गोइंग कंसर्न अगर किसी कंपनी में अप्रोप्रिएट नहीं है, इट डजंट मीन कि उसमें मिस स्टेटमेंट है, राइट। देयर कैन बी अदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। आपको जेन्युइनली कोई आके बोले या जेन्युइन केस हो तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी, सो देयर इज नो कनेक्शन कि भाई गोइंग कंसर्न वाला हो परवेसिवनेस वाला हो। I hope I answered your point. I hope this is clarified now. You can confirm in the chat box. Okay. If despite not being going concern account, not prepared on liquidation basis. Okay, let me read it again. If despite not being going concern, हाँ जी चलो ठीक है, going concern नहीं है, account not prepared on liquidation basis. Okay. तो अभिषेक मुझे लगता है आप ये बोलना चाह रहे हो कि नहीं जी going concern का situation नहीं है, लेकिन बंदा going concern पे बना रहा है। Okay. तो we discuss in a previous slides, अगर ऐसा है qualified है, right? Evaluated कि qualified करो, आपको क्वालिफाई करना है, एडवर्स देना है या डिस्क्लेमर भी देना है। देखो कैसे हो सकता है क्वालिफाइड, वो चार्ट पे आ जाओ, चार्ट ध्यान रखो, आप अपना चार्ट देखो कि भाई आपको बोलो गोइंग कंसर्न का मैटर है, ठीक है, परवेसिव है नहीं है, कन्फाइंड है नहीं है। जनरली देखो मैं बताऊं, गोइंग कंसर्न वाला मैटर ऐसा नहीं होता कि परवेसिव ना हो, परवेसिवनेस रहता ही रहता है। भाई जब पैसा ही नहीं है, सब कुछ ही नहीं है, तो क्या करोगे। तो अगर गोइंग कंसर्न मैटर है, तो अगर मुझसे अगर बात करोगे, सेफ बेट इज कि डिस्क्लेम द ओपिनियन। अगर आप बात करोगे कि भाई नहीं जी गोइंग कंसर्न है या ये हो जाएगा मैटर है या हमें डाउट है या कुछ है, बहुत रेयर सिचुएशन में कि डाउट है, नहीं जी पैसा आ जाएगा, लाइकलीहुड है, आप कन्विंस नहीं हो रहे, बट देयर आर सेवरल अदर फैक्टर, मे बी यू कैन क्वालिफाइड रादर देन गिविंग अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। या so should give the adverse opinion। देखो adverse, if you remember जो हमने चार्ट देखा था उसमें ये था कि भाई मटेरियल है और परवेसिव है, आपको पता है और परवेसिव है, आपको क्वांटिफिकेशन वो सब पता है। So you need to evaluate it. Yes, it can be adverse opinion here also, but you need to evaluate it, right? भाई excuse me, safe bet is generally मतलब जो मुझे लगता है कि ठीक है rather than disclaimer, मतलब वो पॉइंट ऐसा है कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा। भाई आप सोचो, आप गोइंग कंसर्न आप क्वालिफाइड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि क्वालिफाइड है, आपको डाउट है, बट आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी सर्टेनिटी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यू नो इट्स डिफिकल्ट टू जज कि ठीक है जी मटेरियल है बट परवेसिव है, या फिर मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। रादर देन यू कैन से कि भाई मुझे एडुकेट एविडेंस मिले ही नहीं, मैं जज ही नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, राइट। सो दिस थिंग नीड टू बी इवैल्यूएटेड केयरफुली, या एंड यू कैन ऑलवेज रेफर एसए जो मैंने गोइंग कंसर्न, इफ आई विल गो बैक टू दिस स्लाइड, एसए 570 read with the other essay that is 705. Yeah, I hope I answered your point. Yeah. Okay, let's move to the next essay, essay 706। इसमें मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की। जनरली मेरा काफी लोगों से, आप लोगों से फर्टिलिटी में डिस्कशन होता है, मुझसे मतलब बात करते हैं यार ये सिचुएशन है क्या करें, ईयूएम दे दें। तो मतलब मैं उनको ये बोलता हूँ कि जी आपको लगता है कि ईएम सॉफ्ट है, रादर देन क्वालिफाई यूज करने का एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे दो, बट यू नीड टू इवैल्यूएट इट केयरफुली। ऐसा नहीं कि भाई ईएम दे दो काम चल जाएगा, जो चीज क्वालिफाइड होनी है वो क्वालिफाइड ही होगी, क्वालिफाइड मैटर है, और जो चीज ईयूएम में जाएगा वो ईयूएम में जाएगा। ईयूएम कांट रिप्लेस क्वालिफिकेशन, प्लीज नोट दैट, राइट। डोंट यूज ईयूएम एज अ टूल कि भाई आप क्वालिफिकेशन मैटर था लेकिन आपने कुछ बात घुमाई, उसको करा, कंस्ट्रक्ट करा और कि चलो जी ईएम दे दो, हमारी भी बात रह जाए और क्लाइंट की भी बात रह जाए। नहीं, ईएम के सिचुएशन है अपने, ईएम के सिचुएशन क्या क्या हो सकते हैं, आई ट्राइड समराइजिंग द कमिंग स्लाइड। बट अगर मैं एक जेन्युइन अगर बात करूं कि भाई मान लीजिए आपके सर्च हुई है, ठीक है, आपके कोई सर्च हुई है आपके क्लाइंट पे, टैक्स की सर्च हुई है, आपने पूरे एडिकेट प्रोसीजर करे, आपने जो इनकम टैक्स के कागज हैं वो देखे आपने, और उसके अलावा आपने क्लाइंट से डिस्कशन करा, जितना भी है आपने सब कुछ देखा,
बट स्टिल यू डोंट नो द आउटकम, राइट? ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? राइट थिंग इज आप डिस्क्लोज करो कि चलो जी सर्च हुई थी, ऐसे हुई, इनकम टैक्स की सर्च हुई थी, सारा हुआ, एंड मेंशन दैट इन एन ईएम आल्सो कि ये हुई थी, जिसका सर्च वगैरह हुई थी, ये हुई है, जिसका अभी हमें नहीं पता क्या एडिशन होगा क्या नहीं होगा, या मैनेजमेंट ने देखा है। और इट्स जो मैं तुम्हें सिचुएशन बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरीली, डोंट कोट इट कि भाई आप लोग बोलो कि अच्छा जी सर्च हुई है तो सुनील शर्मा जी ने कहा था कि सर्च में यूएम डाल दो। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड टू इवैल्यूएट केयरफुली, राइट, कि रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो द पर्पस इज, इफ आई विल गो बाय लाइन बाय लाइन, EUM is draw users attention to a matter or matters presented or disclosed in the financial statements. मैंने इसलिए बोल्ड हाईलाइट करा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, ऑडिट रिपोर्ट में आप यूएम पैराग्राफ में उसका रेफरेंस दोगे नोट का, राइट? और वो जो मैटर है that are of such importance that they are fundamental to the user understanding of the financial statement, right? तो EUM की कहानी ये है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे, राइट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर जाए, प्रॉपर जो भी मैटर है आप ब्रिंग आउट करो अपने ऑडिट रिपोर्ट में, राइट? और उसको बोलो कि भैया हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, सो दैट द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज EUM. क्या? Now moving on to next paragraph, जो कि दूसरा पैराग्राफ है, that talks about other matter paragraph. Other matter paragraph is simple paragraph, जहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर से कोरिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है. बीइंग एन ऑडिटर आपके जजमेंट के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, अपनी ओपिनियन अपनी रिपोर्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अदर मैटर पैराग्राफ देते हो, राइट? सो लेट्स रीड अ पैराग्राफ. So let's read this paragraph. Draw users' attention to any matter or matters that matters other than those presented or disclosed in the financial statement. I hope that is clear. कि ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है लेकिन हमें तो बताना जरूरी है भाई, ठीक है? That are relevant to the users' understanding of the audit, right? The auditor's responsibility or the auditor's report. तो जो अदर मैटर पैराग्राफ है उसकी अहमियत है आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर रिपोर्ट को, राइट? इट्स नथिंग टू डू विद जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर है या आपके जो भी है उससे रिलेटेड नहीं है, राइट? सो डोंट ट्राई टू यूज अदर मैटर पैराग्राफ एज अ टूल, राइट? क्लासिक एग्जांपल इज, कैसे होता है क्लासिक एग्जांपल? जैसे आप बोलते हो आप कोई कंपनी की ऑडिट कर, ठीक है, उसकी कुछ ब्रांच डिवीजन, इमटेरियल ब्रांच डिवीजन है, जहां पे आप क्या करते हो कि आप ब्रांच डिवीजन की ऑडिट नहीं करते हो और आप जो उसका अदर ऑडिटर है, ठीक है, अदर ऑडिटर की रिपोर्ट पर रिलाय करके अपनी रिपोर्ट इश्यू करते हो, तो वहां पे आप अदर मैटर पैराग्राफ में पैराग्राफ डालते हो, राइट? कि भाई ये जो ब्रांच है, ये जो डिवीजन है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट है वो दूसरे ऑडिटर ने करी और मैंने रिलाइट करा एंड दैट्स इट, लेट्स गो ऑन, ठीक है? और मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इसलिए कंक्लूड करा है, और जो ब्रांच ऑडिटर ने या किसने कंक्लूड, जिसने भी रिपोर्ट दी है, मतलब वो उसके लिए जिम्मेदार है, मैं अपने काम के लिए जिम्मेदार हूँ, लाइक दैट. या फिर अगर मैं अगर क्लासिक केस की बात करूं, जैसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता है कई सारी सब्सिडियरियां होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, कई सारी सब्सिडियरियां हैं, ठीक है, 5-10 है, ठीक है, जिसमें 2 बड़ी हैं, 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटी छोटी है, छोटी छोटी रिलेवेंट, बस खोल के रख रखे हैं शौकिया तौर पे, ठीक है? आप बात करो, आप अपना स्कोपिंग करोगे जब आप देखोगे कि कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या रिलेवेंट है. आप बोलते हो जी कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैं ये 2 एंटिटी कर लूं तो ही मेरा 90% कवरेज आ जाएगा, 95% कवरेज हो जाएगा, तो ये बाकियों का क्या करना है, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं. फिर आप मैनेजमेंट से बात करते हो, मैनेजमेंट से पूछते हो भाई हाँ ऑडिट रिपोर्ट दोगे नहीं दोगे, कई बार लगता है कि ठीक है जी ऑडिट नहीं हो पाएगी, ठीक है जी मत दो, आप तो मैनेजमेंट साइन दे दो, राइट? तो उस केस में आप लिख सकते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ में कि भाई हाँ ये जो 4 सब्सिडरी, 3 सब्सिडरी, व्हाटएवर बी द नंबर ऑफ सब्सिडरी, कि इनके ये जो है उनकी रेवेन्यू, उनका नेट एसेट, उनका कैश फ्लो वगैरह वो सब जो है वो भाई मैनेजमेंट का साइंड है, ठीक है, उनकी ऑडिट नहीं हुई है, ठीक है, और हमने उसी पे रिलाय करा. एंड दीस कंपोनेंट्स, दीस सब्सिडरीज और व्हाटएवर द नेम यू कैन कॉल, वो जो है वो नॉट मटेरियल टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स अदर मैटर पैराग्राफ में जो जाते हैं. क्लासिक एग्जांपल यू विल सी in listed entities जहाँ पे consolidated financial statement है applicable है, उनकी आपको consolidated audit report में other matter paragraph मिलेगा until unless उन्होंने सारी component, सारी subsidiary की audit खुद से ही ना की. You will see that, right?
but don't mix it, don't mix this other matter paragraph. सिंपल अगर मैं बात करूं, अदर मैटर पैराग्राफ जरूरी होता है कि भाई आपको अपने ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑडिटर की रिपोर्ट रिगार्डिंग कुछ डालना है, वो अदर मैटर में डालना, राइट। जबकि ईएम क्या है, ईएम आपको कोई ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्क्लोज है और आपको भी लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्रिंग आउट करना, ब्रिंग इट ऑन द टेबल, या ओके। सो मैं बात करूं नीचे, सर्कमस्टांसेस इन विच एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ मे बी नेसेसरी, कहाँ है, देखो जी, जैसे हमने बात करी कि भाई हमारा सर्च हो गया, ये कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन चल रहा है, रेगुलेटरी एक्शन है, दैट इज सो सीवियर, सो इम्पोर्टेंट कि जिसके आउटकम का कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट, दैट नीड टू बी bring out here in by way of under the EUM paragraph in audit report. बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, बीट डीटी, बीट इनडायरेक्ट टैक्स, बीट डायरेक्ट टैक्स, डीटीआईडीटी, कई बार जो उनकी डिमांड होती है, नोटिसेस होते हैं, दैट्स इनसेन अमाउंट, कुछ भी। आई हैव सीन कि जहाँ पे टर्नओवर कंपनी का 100 करोड़ है साल का, वो डिमांड आ जाती है 400 करोड़ की। आई डोंट नो कैसे कंप्यूट करते हैं, बट करते होंगे, ठीक है। हम लोग उसको बीइंग एन ऑडिटर असेस करते हैं, अपन सब लोग असेस करते हैं, देखते हैं आउटकम क्या है, लीगल ओपिनियन लेते हैं, लॉयर से डिस्कस करते हैं। अगर आपको बीइंग एन ऑडिटर भी आपको अगर कोई अपने लीगल ओपिनियन ले लिए इंडिपेंडेंट, आप वो भी देखते हो, आप आउटकम देखते हो, लाइकली आउटकम क्या होता है। जनरली वी यूज्ड टू कॉल इट अ पीपीआर असेसमेंट, राइट, प्रोबेबल पॉसिबल रिमोट, हम लोग देखते हैं। अगर रिमोट है कोई टेंशन नहीं, मस्त रहो, ठीक है। अगर प्रोबेबल पॉसिबल है, देखो पॉसिबल है तो गए, राइट, प्रोबेबल है, चलो प्रोबेबल की बात करते हैं, सॉरी प्रोबेबल तो सीवियर है, सॉरी, पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, तो क्या करते हो आप, जनरली क्लाइंट को बोलते हो कि भाई कंटीजेंसीज में इसको डिस्क्लोज कर, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज कर, अकाउंटिंग इंड एज व्हाटएवर बी द थिंग, और आपको लगता है यार ये सीवियरिटी है, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि मुझे ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा, राइट, कल को पता नहीं क्या नहीं हो, यू शुड गिव इट, या। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, एक क्लासिक एग्जांपल है which I am practically I generally मैं मतलब डील करता हूँ, जैसे कई कंपनीज बोलते हैं कि जी हमें एप्लीकेबल है एएस, लेकिन फाइनेंशियल बनाएंगे हम इंड एस के नाम से, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम यूएम दे देंगे उसका, राइट। तो यहाँ पे यही बोला है कि ठीक है, अर्ली परमिशन, कई बार कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, कुछ भी आया जो कि एप्लीकेबल ही बाद के सालों से है, बट अर्ली अडॉप्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्यों करती हैं कंपनियां ये काम, क्यों करती हैं, सो दैट कि उनको बेनिफिट मिले उसकी रिपोर्टिंग का, उनके फाइनेंशियल नंबर एनहांस हो, डिस्क्लोजर एनहांस हो, भाई उनको लगता है पर्सनली कि भाई हाँ, अगर हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले अडॉप्ट कर लेंगे, हमारा फाइनेंशियल का मतलब प्रेजेंटेशन, पोजीशन, नंबर्स वो अच्छे दिखेंगे, दैट्स फाइन, ठीक है, प्रेजेंट इट बाय वे ऑफ ईएम, बताओ कि जी ये इसलिए आ रहा है, सो दैट यूजर ऑफ फाइनेंशियल केम टू नो, या। सो दीज आर द केसेस एंड द फाइनल पॉइंट इज लाइक मेजर कैटास्ट्रॉफ, अगर कोई हो, वो कुछ हो, या हमेशा ही रहे जिसमें दिक्कत आए कि भाई फाइनेंशियल की पोजीशन प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दैट इज द पॉइंट। सो इट इज अगेन, ये जो लिस्ट है, यहाँ 3 पॉइंट है, मैंने भी इनका एक्सट्रैक्ट ऐसे से लिया है, 706 से लिया है। इट इज अगेन, इट्स नॉट अ एक्सक्लूसिव लिस्ट, इट्स अ इंक्लूसिव लिस्ट, या। देयर कैन बी मेनी मोर, आपको देखना पड़ेगा, गाइडेंस में आपको जाके इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कब कब हो सकता है। अगेन जो भी एजुकेशन मटेरियल है वो सब आई ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग इन द स्लाइड इटसेल्फ। Yep. Let's move to the next point. Any question if you guys have on other matter or EM paragraph, happy to answer those. We will wait. Let's wait for 1 minute and then we can 1 or 2 minutes and we'll move to the next slide. So no question, guys. Any question? Any query, question? I will happy to answer those. Otherwise, let's move to our last topic, last point, that is SS 720, that is other information. Okay, let's move to it.
Okay, I'm taking you guys back to my slide initially, जहाँ पे मैंने summarize करा था. Okay, so here it is. मैंने कहा content of audit report. Okay, just to quote, मुझे आपको याद दिलाऊं, ये मैंने मतलब एक कंपनीज का लिया था, कंपनी का एग्जांपल लिया था. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला था, अदर इंफॉर्मेशन अदर देन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिट रिपोर्ट पे. नाउ हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लिटिल बिट डिटेल. द गवर्निंग एसे इज एसे 720, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम लोगों को याद हो, मतलब आई डोंट, मोस्ट ऑफ यू जब आप लोगों ने आर्टिकलशिप करी हो, जैसे मैंने भी करी थी, तो हम लोग क्या करते थे भाई, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले प्रिंट वगैरह आता था, हमें कहते थे प्रूफ रीडिंग करो, इफ यू गाइस रिमेम्बर. तो प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब किसी के लिए होता है तो भाई किसी का आंसर ये हो सकता है कि हाँ जी रीड कर लो. अब जो जनरली व्हाट आई डू, या मुझे क्या चाहिए, मैं अगर मेरे पर्सनली बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप एनुअल रिपोर्ट दे रहे हो, पब्लिक डोमेन में जाएगी, वेबसाइट पे जाएगी और कहीं जाएगी, तो उसमें जो नंबर है यू शुड क्रॉस लिंक इट. राइट, लिंक इट मतलब कि अगर आपने कोई सेल्स का नंबर दे रखा है, आपने इन्वेंट्री का नंबर दे रखा है, वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच. राइट, या कोई रेशियो वगैरह दे रखा है, वो मैच. ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल में तो कहीं कुछ और है और वहां पे जो एमडीए, परफॉर्मेंस एनालिसिस, नीचे मैंने ये सारी चीजें आई ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग दोस्त, वहां लिख रखा है, वहां पे कुछ और आ रहा हो. सो दिस इज द मेजर थिंग. कई बार मिसमैच है. देखो, अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखते हो, आप देखोगे कि जनरली शुरुआत की स्लाइड में सारी कथा लिखी हुई होती है, क्या प्रोडक्ट डील कर रहा है, क्या करेगा, परफॉर्मेंस, कई लोगों के स्टेटमेंट होते हैं, अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट, उनमें बढ़िया बढ़िया अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, नंबर दिखाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी एनुअल रिपोर्ट होती है. ऑटोमेशन भी कई हो गया आजकल तो एनुअल रिपोर्ट का. इफ यू विल सी, इट्स नॉट जनरली, इट्स नॉट अ पीडीएफ थिंग, it's more like technical thing कि भाई आप क्लिक करके relevant section पे जा सकते हो, you not need to download entire PDF and all. So that is also there. So imagine आप शुरू में तो सारी चीजें आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट आते हैं, वो तो लास्ट में आती है अगर आप देखोगे, राइट. तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो अदर इंफॉर्मेशन है, राइट, अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है. आई ट्राइड इनकॉर्पोरेटिंग इट. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनुअल रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, किसी भी नाम से बोल लो, राइट. मैनेजमेंट कमेंट्री हो, कोई ऑपरेशन और फाइनेंशियल रिव्यू, नंबर वगैरह कुछ हो भाई, ठीक है, फाइनेंशियल के हाईलाइट आई डिस्कस, राइट. कोई और रिपोर्ट है, इंक्लूडिंग सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट हो, कोई चेयरमैन का भाषण हो जिसमें लिखा हुआ हो कि जी कंपनी ने बहुत अच्छा काम करा, ये सेल बनाए, ये नई सब्सिडरी खोली, ये नए प्रोडक्ट लाए एंड सो ऑन, उन सब में, तो दैट इंक्लूड अदर इंफॉर्मेशन. हियर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कमेंट कि भाई वो अदर इंफॉर्मेशन जो है वो सब सही है या नहीं, राइट. सो इफ यू विल गो बाय डेफिनेशन, राइट, तो अदर इंफॉर्मेशन मतलब इट्स नॉट एन ऑडिट रिपोर्ट या फाइनेंशियल, उसके अलावा जो भी हो वो सब सारे आपके अदर इंफॉर्मेशन में होंगे. देयर आर एक्सक्लूजन ऑल्सो, कि अगर मैं बात करूं, जो अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि भाई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कंपनी ने कोई बनाई है, राइट, या कंपनी ने कोई 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 रिपोर्ट बनाई है कि बीइंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, जेंडर बायस नहीं है हम, या हम हर तबके के लिए या हर सामाजिक उसके लिए वो करते हैं, राइट. या बोलते हैं कि नहीं जी, हमारा प्रोडक्ट अगर पॉल्यूशन फैलाता है तो हम प्रोडक्ट उस पॉल्यूशन फैलाने के लिए, हम रोकने के लिए हमारे पास फिल्टर पावर प्लांट है. या अगर कोई कोई एनुअल रिपोर्ट में होता है कि जी हम हमारे यहाँ जो हमारी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो हम सोलर के जरिए कर रहे हैं, पूरा हमारा 100% कंजम्पशन सोलर के थ्रू मीट हो रहा है, राइट. तो दैट इज समथिंग, दैट इज नथिंग टू डू विद द अदर इन्फॉर्मेशन, और वो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. या अगर मैं बात करूं कि और थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करें हम कि भाई अगर कोई लेबर प्रैक्टिसेस हैं, या जैसे अभी अभी एक बहुत रिसेंटली, मतलब जब कोविड का बुरा टाइम था तो कंपनीज भाई बिजनेस तो चले गई, राइट, वो बिजनेस कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट थी. तो कई कंपनियों ने इंश्योर करा प्रोविजंस वगैरह, कैसे इंश्योर करे कि भाई हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे कोविड के प्रोटोकॉल ध्यान रखते हैं. जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल कि भाई ठीक है, वो आएंगे, सैनिटाइज करेंगे अपने हाथ, राइट, सैनिटाइज करके वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे, ऐसे नहीं है मिंगल होंगे, हर वक्त मास्क पहने रहेंगे, टेम्परेचर चेक होगा उनका, बस में जाएंगे तो बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, क्यू बना के रखेंगे एंड सो ऑन, राइट. या उसके अलावा कि भाई ठीक है, कंपनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, ठीक है, या कंपनी ने हॉस्पिटलाइजेशन करा, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखा, सो ऑन, राइट.
तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन एक एनुअल रिपोर्ट में आ सकती है. दे डजंट कंस्टिट्यूट एज अदर इंफॉर्मेशन, राइट. दे आर भाई तुम भी उसमें क्या करोगे, ठीक है, तुम ये बोलोगे हाँ जी अच्छी बात है, ज्यादा ज्यादा हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं उसमें, और तो कुछ करना नहीं है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब दैट डजंट कंस्टिट्यूट एज अदर इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट अदर इंफॉर्मेशन इन सिंपल वर्ड्स, राइट. तो the responsibility is with us कि अदर इंफॉर्मेशन हो, कंसिस्टेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है. और आपको अगर लगे कि नहीं है जी, नहीं कंसिस्टेंट है, we should bring out to the auditor, right. when other information matter करेगा. To be very honest, I have not seen, मतलब ऐसा कोई मैंने प्रैक्टिकल केस कभी देखा नहीं कि जहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो. जनरली केसेस क्या होते हैं वो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करता हूँ. से फॉर एग्जांपल कि भाई देखो जनरली क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट हो जाती है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह वो सब होता है, फाइनेंशियल ऑडिट हो जाती है, एनुअल रिपोर्ट बनने में टाइम लगता है, या मैं बोलूं बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग, ऑडिट कमेटी मीटिंग पहले हो जाती है और एनुअल रिपोर्ट में टाइम होता है, वो लॉ का भी रिक्वायर्ड है. तो जनरली हमें अदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, टाइम लगता है, राइट. तो उस केस में क्या करें, अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में तो हमने बोल रखा है, ऑडिट रिपोर्ट में तो मैंडेट कर रखा है एसए ने भी, एसए 720 ने भी, अदर इन्फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट करो, राइट. So if you'll see the standard language SS 720 में या एजुकेशन मटेरियल है, इसका भी एजुकेशन मटेरियल है, अगर आप वहां जाके देखोगे तो वहां पे स्पेसिफिक सिचुएशन दे रखी है, वहां पे बोल रखा है कि अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिली है, राइट, बीट बोर्ड रिपोर्ट, बीट एनुअल रिपोर्ट और बीट एनीथिंग, जो कि हमने ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा, दैट्स फाइन, नो इश्यूज. आप उसमें लिख सकते हो कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीजें हैं वो हमें ऑडिट रिपोर्ट या डेट ऑफ साइनिंग के बाद में मिलेंगी, हम बाद में देखेंगे, और अगर हमें कुछ इनकंसिस्टेंसी अगर हुई उसमें तो हम कमेंट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, राइट. अगर आपको पहले मिल जाती बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो, रीड करो, रेफरेंसिंग करो प्रॉपर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, और उसके ऊपर कमेंट करो. मेनी टाइम्स देखो छोटी कंपनी के आप लोग ऑडिट करते हो, हम सब लोग करते हैं, वहां पे क्या मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं तो कभी बोर्ड रिपोर्ट किसी क्लाइंट की नहीं बनाता, बट कई बार होता है, हम फैसिलिटेट करता हूँ उसको, राइट. उस केस में ठीक है, आपके हाथ में ही है सारा सब कुछ, दैट्स फाइन. बट थिंक अबाउट जहाँ पे आप बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट मांगते हो, एक कोई स्टार्टअप है जो कि सारे कंप्लायंस करता है, आप कुछ सब कुछ देखते हो, जाके देखते हो, वहां पे यू हैव दैट राइट, राइट, टू एंश्योर, मतलब आप उससे मतलब आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीड करना, कमेंट करना, क्योंकि आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहे हैं उसको. Yep. So guys, make sure that. So this is the thing. नहीं है तो नहीं है तो है. Good thing, good practices कि आप अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है, एनुअल रिपोर्ट वो सब आप पढ़ो, उसको क्रॉस रेफरेंसिंग करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अपने वर्क पेपर से, एंड कंक्लूड करो. Yeah? So this is what the ask as per SA 720. Any question, query? I would like to, I'm happy to answer those. And after this, we will discuss a little bit about the Caro, very in a quick manner, and then a little bit about IFC. IFC is important, मतलब उसका audit report वगैरह. So I thought spending a few minutes on that aspect also. And yeah, post that, yeah, I think we'll spare 10 minutes for Q&A, for discussion, any thought process, happy to discuss, because I strongly believe, मैं हमेशा एक कोड यूज करता हूँ कि बात करने से ही बात बनती है. तो अगर आपको कुछ है, कोई भी ख्याल है, वैसा नहीं, कुछ भी ख्याल नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल वाला नहीं, अगर आपको ऐसे 700 799 से रिलेटेड अगर है, ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, या दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, फील फ्री टू आस्क, डोंट हेजिटेट. Okay guys, final point, I think मुझे लगा कि ये जो लिंक है वो आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे, जो कंटेंट मैंने रेफर करे, राइट. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, रादर यूजिंग मतलब पकी पकाई स्लाइड, डाउनलोडिंग इट फ्रॉम इंटरनेट, एंड देन उसको पूरा मतलब बोल देना, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा. रादर मैं जो कोर है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो कोल्ड लिटरेचर है वही रेफर करो, राइट. गूगल या कोई टेक्स्ट गुरु की साइट, अब सॉरी डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो फोरम भी सही है अपनी जगह पे, बट इमेजिन उन फोरम पे जो लोग हमें कंक्लूड करा रहे हैं, जो समराइज कर रहे हैं, वो भी हम जैसे ही हैं, राइट.
तो थिंक अबाउट इट, जब वो हम जैसे हैं तो हम भी डायरेक्ट देख सकते हैं इनको. सो माय पॉइंट इज डिस्कसिंग अबाउट ऑथेंटिक सोर्सेस, राइट. आई जस्ट ट्राइड लिस्टिंग डाउन कि सोर्सेस क्या क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट फॉर योर रीडिंग for reading and concluding the audit report. I tried listing down those, right? So you will see a list of essays. Most of us, I think, हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं, सब कुछ हम सबको पता है, right? Second is very important. Second में अगर आप देखोगे implementation guide है, जो कि ऐसे 700 clean report, 75 qualified, 706 that is EUM or other matter, उसके बारे में बात करते हैं. You will see lot of example, right? आप खोलोगे आपको बहुत बड़ा दिखेगा, एकदम से आप देखोगे अरे भाई ये तो बहुत सारे पेजेस का है. बट आई विल टेल यू, इसमें जो कंटेंट है उसमें एग्जाम्पल रिपोर्ट दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है अलग अलग. वेरी 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 यूजफुल. आई कैन टेल यू, यू गाइस कैन यूज, प्रैक्टिकल कैन अप्लाई और इट इज गोना हेल्प यू. या देन फिर जो हमने बात करी, कैम की बात करी, ऐसे 701 इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन गाइड है. इट्स इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म. सिमिलरली एसए 720 है, it's also in a question answer form that is helpful for you guys. कोई relevant situation हो, कोई question answer हो, वहाँ पे आपको helpful रहेगा. That is one thing. मैंने कारो यहाँ पे जानबूझ के डाला, आप लोग पढ़ो देखो, नया कारो एप्लीकेबल होने वाला है. वाह, ये यहाँ पे डालने के पीछे ये था कि जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, अभी रिसेंटली बात करता हूँ लोगों से, तो यू नो आई कैन टेल यू 90-95% डोंट हैव दैट क्लू कि है क्या जी. किसी के लिए कारो 2016 ही आज तक चल रहा है या चलता जाएगा, या किसी कोई मुझे ये बोलता है कि हाँ जी अब तो रिपोर्ट ही कारो 2020 की आ रही है, उसी में ही बन रही है, तो मैं थोड़ा सरप्राइज होता हूँ. तो क्योंकि हमारे ऑडिट रिपोर्ट का अनेक्सर होता है कारो का, जहाँ पे भी कारो एप्लीकेबल होता है सब्जेक्ट टू दैट. तो आप लोग ये देख सकते हैं, वेरी गुड गाइड, एक चेकलिस्ट फॉर्म में है, राइट, क्लॉज बाय क्लॉज उसमें दे रखा है. You can construct your Caro report accordingly also. Very helpful guide, आप लोग ये देख सकते हैं. 6th point is very very important. Generally I saw, मतलब small company में, मतलब या मैं अगर बात करूँ कि until unless listed नहीं है, in fact listed में भी मतलब कई जगह मैंने देखा है कि this particular aspect is not taken seriously. So ये उसके ऊपर है. अगर मैं इसके रेलेवेंस की बात करूंगा, इस ये पूरी नॉट ओनली इन इंडिया, ये जो टर्म है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एंटायर वर्ल्ड. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर अबाउट द ग्रेट एनरॉन फियास्को. जो एनरॉन का एक इशू हुआ था, और उस एनरॉन की वजह से वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडिट फर्म इन द वर्ल्ड, राइट, अगेन रिपीटिंग, one of the largest audit firm of the world, yeah, जिसको अपना मतलब जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा उस कारण, तो उसके बाद में ये टर्म आई, राइट, ये टर्म आई, और यूएस में भी सीओए ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया, सीरियसली इम्प्लीमेंट करा. आज भी उनकी ऑडिट रिव्यू ये मतलब इसी अराउंड फोकस है, राइट. मैं बात करूं तो दे आर लीस्ट बॉदर अबाउट, not least, मतलब बॉदर तो है, but they are more focused about the controls in the environment. Now जैसे जैसे आईटी का और धीरे धीरे फाइनेंशियल्स, आईटी ऑटोमेशन का आ रहा है, तो इट्स अबाउट आईटी कंट्रोल. कंट्रोल आर देयर, राइट. तो अब आईटी कंट्रोल है, प्रॉपर है नहीं है, वो सारे भी आ रहे हैं इसमें. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जहां आप बात करते हो, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सब लोगों के, Jaipur is also becoming hub for startup और इन सब के लिए. तो you guys should focus, you guys should question management कि भाई आपका इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है. अब बताओ हमें, आपके प्रोसेस नोट कहाँ है. चलो कई बार हो सकता है किसी के प्रोसेस नोट ना हो, ठीक है, बैठो साथ में बैठो, बोले ठीक है जी बैठते हैं, नोट करते हैं, आप बताते जो, आप उसमें देखो सो कॉल्ड रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स है. देखो अगर जिसके लिए एप्लीकेबल होगा ही, उसको तो प्रॉपर बनाना पड़ेगा, राइट. जो भी जिन जिन कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा, से फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल की 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में, उसके लिए तो एप्लीकेबल होगा ही होगा. तो उस केस में तो मैनेजमेंट को भी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बोलना है कि उनके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वीक है, ठीक है, सब सही है. जनरली व्हाट कंपनीज डू, और बीइंग एन ऑडिटर हम लोग भी जो मिस कर जाते हैं वो ये होता है कि कंपनी तो लिख देती है हमारे कंट्रोल सही है, हम भी एक ऑडिट रिपोर्ट का अनेक्सर दे देते हैं कि हाँ जी आईएफसी सब बढ़िया है, बट उसके ऊपर काम नहीं करना पड़ता.
देखना पड़ता है आपको, राइट? इसके रिगार्डिंग पूरा गाइडेंस नोट है. एंड व्हाई आई इंक्लूडेड दिस इन हियर, रिपोर्टिंग में मैंने क्यों इंक्लूड करा है? अगर आप गाइडेंस नोट देखोगे वहां पे आपको एग्जाम्पल रिपोर्ट मिलेगी, राइट? नाउ दोज एग्जाम्पल रिपोर्ट वो पुराने फॉर्मेट में, राइट, जब पहले वाला ऐसे 700 रिवाइज नहीं हुआ था एंड सो ऑन. तो आपको वो रिपोर्ट देखो, देयर आर वेरिड जजमेंट, राइट, बट आई पर्सनली एट माय लेवल बिलीव कि जब ऐसे 700 जो ओपिनियन के ऊपर ऐसे वही रिवाइज हो गया, तो अकॉर्डिंगली जो गाइडेंस नोट में एग्जाम्पल ऑडिट रिपोर्ट दे रखी है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की, राइट, तो आपको उसको भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, उसको भी चेंज करना पड़ेगा. नॉट मॉडिफाई, डोंट टेक इट टेक्निकली, मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा. चेंज करना अगर मैं बोलूं तो ओपिनियन पैराग्राफ शुड कम फर्स्ट, देन बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ एंड देन सो ऑन, राइट? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप जब भी आईएफसी की रिपोर्ट बनाओ तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट कि भाई वो जो एग्जाम्पल रिपोर्ट वहां पे दे रखी है, उस गाइडेंस नोट में दे रखी है, और आपका जो SS 700 है उसको आपको मर्ज करके आपको बनानी पड़ेगी. यू कैन रेफर लॉट ऑफ लिस्टेड कंपनीज जहाँ पे ये चीज आपको मिल जाएंगी. अच्छी कंपनीज कोई भी आप देखोगे, बढ़िया प्रैक्टिस जहाँ पे है वहां पे आप देखोगे आईएफसी रिपोर्ट में यू विल सी द चेंज. पहले प्रायर टू 2018, या मैं कहूँ कि 17-18 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे आती थी आईएफसी रिपोर्ट, और 17-18 के बाद में क्या आ रही है. you can easily differentiate and you can apply in your audit report of your companies. I think one guidance note very important, that is on a consolidated financial statement. ठीक है, वो भी आपको देखना चाहिए, उसमें भी एग्जाम्पल रिपोर्ट वगैरह दे रखी है. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एग्जाम्पल रिपोर्ट आपकी अगर मैं बात करूँ, सेकंड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन गाइड ऑन SS 700, 705 एंड 706, वहां पे भी मेंशन कर रखी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट is related to going concern, right? People often miss that, CAs often miss that, but वो आपको देखना पड़ेगा. बैंकर्स वगैरह वो सब बहुत इंसिस्ट करते हैं. अगर देखो, अगर कोई कंपनी जाने वाली है, राइट, डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर कोई कंपनी डूबने वाली है, राइट, लेकिन आप उसको असेस ही नहीं कर पाते हो बीइंग एन ऑडिटर, आप उसका बेसिक गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही नहीं देख पाते हो, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ही नहीं इवैल्यूएट कर पाते हो, then it's a question on us also, right? Please do evaluate it carefully. वहाँ पे उसको रिपोर्टिंग में आपको जो भी आपको उसका कंसिडरेशन लेना है, रिपोर्टिंग में आपको उसको इंश्योर करना है, प्लीज डू इट, राइट, एंड अपना रिपोर्टिंग का इंश्योर करो. So yep guys, that's all I have for today. Yep, thank you all. And this is the famous quote. I remember when I completed my GMCS, these are the 3 lines जो मैंने माइक पे यहाँ पे बोली, and I always believe, and ये हम सब लोगों के ऊपर यही applicable होता है. तो it's believe in yourself guys, give your best and then see the magic. I think अच्छे से करोगे, अपना बेस्ट दोगे, तो ही एज अ प्रोफेशनल लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे. I strongly believe it. So with this quote, I would like to end my session. In case if you guys have any question, query, you want to discuss anything, feel free to discuss. And accordingly, the person who is controlling this Zoom call can unmute you guys. We are open for the queries. If you have any query, please let us know. Otherwise, we'll conclude the session. I think, sir, we are not getting any queries. And even guys, you guys can type. You guys can time on a chat box, and accordingly the branch person can unmute you guys. तो एक्चुअली ऑनलाइन के केस में मुझे दिखता नहीं है कि कितने लोग सो गए, कितने जगे हुए हैं. पूरी कोशिश करिए अपनी तरफ से आप लोग जगे रहो. So I don't know iPhone, I don't know your name. It's written that iPhone to everyone. So thank you iPhone. Thanks a lot. Will good to know your name also. Aditi, hello Aditi. Hi. I think let us conclude. We talked a lot. Thanks Abhishek. Thanks for your questions. Since we are not getting queries, I'm concluding it. We can Shubham, we can wait for 1 or 2 minutes, one or 2 more minutes. Right now we are at 5:54. Let's wait for 1 or 2 more minutes. Sure, sir.
Yeah, thank you, Prachi. Thank you. Thanks a lot for your comments. And I'm reachable. I don't know. I will present my slide once again. If it is not visible, you can reach out to me anytime. Happy to help you guys. I'm based in Jaipur itself. Yeah, just give me a minute. Okay, here it is. Here it is. Share my screen. Done. I hope my slides are visible. Just quickly coming on the first slide. That's my information. You guys can reach out to me. I will prefer first you guys can message me if you have any query question rather than directly calling me. Apologies for the same, but many times कई बार रहता है कोई कॉल में मीटिंग में उठा ना पाए, तो it will be great. आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो, and I will try my best to revert you guys as soon as possible. You guys can also mail me. I will be very honest with you. मैं Gmail बहुत कम देखता हूँ, तो you guys can use other tools. WhatsApp is what the best thing we can connect. So yeah, Shubham, thank you, Akriti. I think we don't have any other thing. Okay, sir. Thanks, Naresh. Thanks a lot. Thank you, everyone. Happy New Year in advance. Have a blast. Cheers. Bye-bye. Thanks. Thank you so much, sir. On behalf of the ICA Jaipur branch, I'm thankful to you for your valuable time and most importantly, the knowledge you shared with us. Special thanks to the ICA Jaipur branch for giving me this honor to moderate this session. My wholehearted thanks to all the dear participants. Thank you, sir. Anil, sir, we are concluding the session. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you. Thanks a lot, guys.